In today's video, I'm going to show you exactly how to go from $0 to $2,000 per month as a copywriter just in 60 days. Even if you don't know what is copywriting, because I'm going to show you exact everything, the whole blueprint of how to go from $0 to $2,000 per month as little as in 60 days. For those of you who don't know, $2,000 is equal to 4 to 5 lakh. Yes, you heard it right. And guys, trust me, when I tell you this free course that you're about to watch is 10 times better than any paid course that you can get on the internet. And I know because I'm the one who bought every single course that you can even think of and spent thousands on researching the absolute best techniques, tactics and strategies which you are going to get free in this tutorial today right now. So if you really want to get the best result, so make sure you lock till the end and watch the complete tutorial. Anyways, without any further delay, let's start. Alright everybody, welcome to the ultimate free copywriting super guide, and the best part is this is absolutely free. And first of all तो मुझे आपको congrats करना चाहिए on watching the best in the world copywriting tutorial, and this tutorial is completely going to change your life and you are going to know in the next 5 minutes, and I'm going to show how. Watch me. A comprehensive, easy to follow step-by-step guide to going from 0 to 2K per month with copywriting in the shortest amount of time possible. And my goal is to make you rich and successful in copywriting, and trust me, I'm going to accomplish my goal if you are going to pay attention what I'm going to teach you in this course. All you need to do is to watch till the end and you will be on fire. So the next is, does this copywriting thing actually work? मतलब ये copywriting की चीज़ वाकई में काम करती भी है या नहीं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज और एक्चुअल में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर स्किल की डिमांड शो करवाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल ये स्किल है। ये कोई शॉपरी नहीं है, कोई जो ये ऐप डाउनलोड करके इसमें से जो है वो आप इतने अर्निंग करें, रोजाना के पैसे निकालें, इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट जेन्युइन स्किल एंड दिस स्किल इज गोइंग टू पे यू thousands of dollars. So जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो है जेनस, जो कि 0 to 18K पर मंथ जस्ट इन 9th मंथ में गया। सिर्फ 21 साल का है और जस्ट 61 डेज में इसने 10K पर मंथ विद कॉपीराइटिंग अपनी अर्निंग को अचीव किया। और इसकी आप सक्सेस स्टोरीज खुद भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शहजाद खान, वर्ल्ड 18 most popular copywriter of 2023. In conversation with Shehzad Khan, a globally recognized direct response copywriter with 12 million in sales and 3,000 plus projects under his belt. He's the top 10 copywriter in the world on Fiverr. ये शहजाद खान जो कि पाकिस्तान से हैं, कॉपी राइटिंग में ही इज़ द किंग। So next 16-year-old Ayan was able to reach an impressive income of nearly 7K per month. Just 16-year-old जब ये कर सकता है तो why not you? Next time हमारा 14-year-old Leopold from Sweden was able to make over 9K with copywriting even while English was not his first language. और ये आप डिस्कॉर्ड का उसका खुद का मैसेज भी देख सकते हैं। This is crazy opportunity and crazy skill copywriting. So next, but has anyone actually made money with the free courses? क्या किसी ने फ्री कोर्सेज के साथ भी एक्चुअल में पैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए? So ये नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज है, मैन ऑन अ मिशन 0 to 8K पर मंथ विदाउट एनी पेड प्रोग्राम और मेंबरशिप। तो यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि 0 to 4K पर मंथ यूजिंग ओनली द फ्री रिसोर्सेज एंड कोर्सेज। यहाँ पे अनदर वन 0 to 500 पर मंथ, और यहाँ पे अनदर वन 0 to 300 इन 2 days, और ये 300 फॉर हिज फर्स्ट 4 emails एज अ कॉपीराइटर। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में इस पर्सन ने $300 बना लिया। और यहाँ पे आप इसका डिस्काउंट का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। लिसन, अगर ये कोर्स आपको जस्ट इन 2 days $300 की अर्निंग करवा सकता है तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं आई एम ऑल ओवर इट। मैं डेफिनेटली 100% इसको कंप्लीट वॉच करूंगा। ओके, तो अब हम जाएंगे फ्रीलांसिंग के प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये देखने के लिए कि हाउ मच आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि वाकई में ही प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क और फाइवर के ऊपर कॉपीराइटिंग की कितनी डिमांड है। तो अब मैं आया हूँ फाइवर के ऊपर। यहाँ पर आकर मैंने सिंपल कॉपीराइटिंग टाइप किया है और यहाँ पर आप गिग्स, उनके रेट्स
और उनके ऑर्डर्स खुद ही देख सकते हैं। 237 ऑर्डर्स, 1K प्लस ऑर्डर्स, 1K प्लस ऑर्डर्स, 640 ऑर्डर्स, 455 रेट। उस बंदे का रेट ही 455 से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रॉल डाउन एंड सी 645, 645, 542, 1K प्लस, 69, 70। उनके रेट्स देखो और उनके ऑर्डर्स देखो और उनके रिव्यूज़ देखो। दैट्स इंसेन। अब चलते हैं हम अपवर के ऊपर। अपवर के ऊपर भी जाकर मैंने सिंपल कॉपीराइटर टाइप किया था और कॉपीराइटर यहाँ पे उनके रेट्स देखो। $70 पर आवर, 60K उसकी अर्निंग, $50 पर आवर, $45 पर आवर और 80K प्लस अर्न, $40 पर आवर, 14, 35, 33, 30, बम बम बोले, 5K प्लस अर्न। और ये मैं 5th पेज के ऊपर था। $35, $70 उनकी अर्निंग और उनके रेट्स बोथ आर। I have showed you practically how valuable this skill is, and believe me, this is not really difficult skill. Now let me ask you a question. Are you ready to make some money and change your life forever? And how to get the most of this course? Save this video by leaving a like. आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को लेटर ऑन देखने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इस वीडियो को एक ही दफ़ा में वॉच करना आपके लिए मुश्किल है। भी इस टाइम थोड़े से आप थका हुआ फील कर रहे हो या अभी आपका पूरी तरह से मन ना हो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने का, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होने वाली है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करने से इस वीडियो को लेटर ऑन वॉच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये वीडियो कहीं गुम नहीं होगी। उसके बाद आस्क ऑल योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। जितनी भी आपकी क्यूरीज हो ना, A to Z सब की सब क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दिस। ओके, फॉलो ऑल द स्टेप्स केयरफुली। लिसन, आपको सब के सब स्टेप्स फॉलो करने होंगे केयरफुली, प्रैक्टिकली। ये नहीं कि जैसा आप नेटफ्लिक्स की तरह इसको वॉच करके छोड़ दोगे, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली खुद सबका सब कुछ करना पड़ेगा। देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट रिजल्ट इफ़ यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस। वॉच पार्ट्स मल्टीपल टाइम। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपको वो पार्ट बार बार उसको ज़रूर देखना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड दिस। सो नेक्स्ट, think of this course like a 1000 cup of coffee. ये कोर्स फ्री है, that doesn't mean it really free. इसके पीछे months and months की प्रिपरेशन और घंटों के घंटों इसको रिकॉर्ड करने में लगे हैं। इसको आप इस तरह से ले जैसे एक कप ऑफ कॉफ़ी हो जिसको आपने $1000 का बाय किया है। अगर वो नॉर्मल सा $2 से $3 का कप है तो नॉर्मल है। आप क्या पता उसमें थोड़ी बहुत छोड़ भी दें, आप कहें बस मैं फिल अप हूँ, मुझे और नहीं पीनी। लेकिन अगर उस एक कप के ऊपर आपने $1000 स्पेंड किए हैं तो सोचो क्या आप उसको वैसे ट्रीट करोगे जिस तरह से आप उस $2 से $3 वाले कप को ट्रीट करते। आपका तो पता नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली इनसेन फॉर दैट कप। इवन आई विल बी लिकिंग दैट कप आफ्टर ड्रिंकिंग द कॉफ़ी, क्योंकि $1000 जस्ट एक कप के ऊपर स्पेंड किया है। सो थिंक ऑफ दिस कोर्स जस्ट लाइक उस $1000 कप की तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड कोर्स है ये कॉपी राइटिंग से रिलेटेड। सो प्लीज़ वॉच दिस केयरफुली, पूरे फोकस के साथ, नेटफ्लिक्स के ट्यूटोरियल की तरह नहीं, और जो मैं स्टेप्स बताऊं उनको प्रैक्टिकली करना भी। एंड इन केस यू वर वंडरिंग, नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट मेक कॉपीराइटर। इन फैक्ट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन मेक बेटर कॉपी फास्टर बाय यूटिलाइजिंग AI टू आवर एडवांटेज। देखो, कॉपी राइटिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि AI रिप्लेस कर देगा या AI से कम्प्लीटली जो है ना आप कॉपी राइटर बन सकते हो बस उसको थोड़ी सी प्रॉम्प्ट देके। कॉपी राइटर एक जो है ना अल्फाज का कनेक्शन होता है रीडर के और आपके दरमियान में। ये कनेक्शन AI जो है ना इमोशंस, कॉपी राइटिंग जो होती है ना कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इमोशंस, और ये चीज़ AI के साथ कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये रिसर्च बेस्ड काम होता है, ये कम्प्लीटली AI के साथ बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं हो सकता। सो डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, AI को आप यूटिलाइज जरूर कर सकते हो और अपनी 10 टाइम बेटर कर सकते हो अपनी कॉपी राइटिंग को। येस, यू कैन स्टार्ट इफ यू ओनली हैव अ फोन। अल्दो अ फोन इज ऑल यू नीड, अ PC और लैपटॉप विल ग्रेटली हेल्प इन मेकिंग एवरीथिंग एज एफिशिएंट इज पॉसिबल। अगर आपके पास लैपटॉप और PC नहीं है तो दैट इज नॉट द एक्सक्यूज। आप मोबाइल फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप और PC डेफिनेटली जो है वो काम को ना बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। यस, कॉपी राइटिंग वर्क्स इन एनी कंट्री। वी हैव कॉपी राइटर हु आर विनिंग फ्रॉम एवरी कंट्री इमेजिनेबल, स्पेशली नाइजीरिया एंड इंडिया। ऑल यू नीड इज एक्सेस टू वाईफाई विच यू हैव इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉपी राइटिंग जो है ये कोई कंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पर भी हो, एनी वेयर इन द वर्ल्ड यू कैन डू कॉपी राइटिंग। आप किसी भी अंडर डेवलप कंट्री से हो, नाइजीरिया से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो।
बस आपको वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है क्योंकि आप मुझे वॉच कर रहे हो, बिना इंटरनेट के तो मुझ तक नहीं पहुंचे ना। सो यू कैन डू दिस नो। No, it doesn't matter what age you are. There are 14-year-old in that Discord server making over 9K with copywriting and people in there as young as 12 who are making money with copywriting. एज की कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, चाहे 12 के हो चाहे आप 42 के हो, यू कैन डू कॉपी राइटिंग। रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं डिस्कॉर्ड के सर्वर में, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी और बहुत बड़े बड़े भी इस कॉपी राइटिंग स्किल के साथ बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। नो, इंग्लिश डजंट हैव टू बी योर फर्स्ट लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक सक्सेस स्टोरी भी दिखाई है, स्वीडन से है बंदा, वो कॉपी राइटिंग के साथ पैसे बना रहा है, कॉपी राइटिंग की स्किल को जो है वो सेल कर रहा है। कोई बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में मास्टर होने की या इंग्लिश जो है वो आपकी प्रोफिशेंट होने की। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एआई को यूटिलाइज करके अपनी स्किल को ना यहाँ पे लेके जाओगे आप रॉक completely. So don't worry about AI. Here is our tutorial scope, what we are going to cover in this tutorial exactly. And believe me, मैंने कम से कम टाइम में हर एक सेकंड जो है ना वो पूरी तरह से compressed है, पूरी तरह से भरा हुआ है इंफॉर्मेशन के साथ। सो डोंट मिस इवन अ सिंगल सेकंड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको कम से कम टाइम में एज मच एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम टाइम में ओवर भी दिया कि क्या कुछ हम इस कोर्स में आज कवर करने जा रहे हैं। माइंडसेट प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 माइंडसेट प्रिंसिपल थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। द नाइव ऑप्टिमिज्म प्रिंसिपल, इफ कॉपीराइटिंग वर्क्स, द लॉ ऑफ एवरेज। ये 3 माइंडसेट प्रिंसिपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल्स ऑफ कॉपीराइटिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। द कॉपी कंपनसेशन एक्सप्लेनेशन के कैसे कॉपीराइटर इतने ज़्यादा हाई पेइंग है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया है कि कितने ज़्यादा हाई पेइंग है कॉपीराइटर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाउ कॉपीराइटिंग एक्चुअली वर्क, ये कॉपीराइटिंग का पूरा बिजनेस ये किस तरह से काम करता है, कैसे हम क्लाइंट्स को रीच करते हैं, कैसे हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चलता है। व्हाट यू डू एंड डोंट नीड टू नो, क्या आपको जानने की जरूरत है और क्या आपको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिसन टू मी, मैंने एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बस इसलिए ये मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया कि मुझे कैमरे में बोलना और ये माइक में अपनी वॉइस को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नो, मैंने ये ट्यूटोरियल बहुत मेहनत के साथ आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाया है। सो पे अटेंशन टू दिस। सो नेक्स्ट, हाउ टू राइट कॉपी दैट सेल लाइक क्रेजी। राइट योर फर्स्ट पीस ऑफ कॉपी विद मी। यस, हम आज एक साथ अभी आप मेरे साथ अपनी पहली कॉपी लिखोगे। उसके बाद द फंडामेंटल 5 कॉपी राइटिंग सुपर चार्जर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। सेल्स पेज मैस्टरी आई विल एक्सप्लेन टू यू कंप्लीटली। हाउ टू गेट AI टू डू योर डर्टी वर्क, किस तरह से आप AI को यूटिलाइज करके अपनी मिस्टेक्स, अपने काम को बहुत ज़्यादा फास्टर बना सकते हो मशीन की तरह। मतलब जो काम पहले आपने 10 घंटों में करना था ना, वही काम आप 13 मिनट्स में भी कर सकते हो। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आप एक्यूरेट लेजर प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप तबाही मचा सकते हो कॉपीराइटिंग में। ओके, नेक्स्ट हियर इज द यमी वन, गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट इन 30 डेज फ्रॉम नाउ। किस तरह से आप अपना क्लाइंट ऐड करोगे कॉपीराइटिंग का। ऑप्टिमल आउटरीच चीट शीट मैंने आपके लिए एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं जिनको आप फॉलो करके नेक्स्ट 30 डेज में क्लाइंट हंट करोगे। 30 डेज स्पीड रन चेकलिस्ट, रीचिंग 10K पर मंथ इन द नेक्स्ट 90 डेज। किस तरह से आप अपस्किल करोगे, क्लाइंट स्केलिंग, सिंप्लीफाइड क्लाइंट मनी मल्टीफायर की मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। किस तरह से जो क्लाइंट आपको कम पे कर रहा है आप उसको किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करोगे हाई पेइंग क्लाइंट में। व्हाट टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को वॉच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होंगे, ये सारे का सारा कुछ आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो हियर इज आवर पार्ट 1, माइंडसेट प्रिंसिपल, डेवलप नाइव ऑप्टिमिज्म। A positive mindset obviously won't let you do anything, but it will allow you to do anything better than a negative mindset will. One foot on the gas and other on the brake. Listen, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी दुनिया फतह कर लोगे। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा कोई भी काम बेहतर करने में हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट आपको कुछ करने ही नहीं देगा। मतलब आपकी इस तरह की मेंटालिटी होगी कि बस नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, ये सारा कुछ मुझसे नहीं होगा। इस तरह के माइंडसेट के साथ 1 बिलियन% दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, यू आर गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। बट अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो देयर इज़ अ चांस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखाई हैं कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज, अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, डिस्कॉर्ड के सर्वर में कितना कुछ मैंने आपको दिखाया है। सो देयर इज़ अ चांस कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इट्स नॉट रियली अ बिग डील।
you have to do the reps. It works, but do you? Whether this works or not is not a question. There's already overwhelming proof it does. मैंने आपको जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया है. But if you don't put in the work necessary, then don't expect the results. देखो, ये कॉपी राइटिंग तो काम करेगी, लेकिन क्या आप रेडी हो? क्या आप काम करोगे? अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बस ये वीडियो देखूंगा और उसके बाद बैंक से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इधर से पैसा उधर से पैसा, लिसन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी वे. कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज. ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर तरफ से पैसा हो. और ये भी चीज़ बिल्कुल 1 बिलियन% इम्पॉसिबल है कि अगर आप सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करो और उसके बावजूद आप अनसक्सेसफुल ही रहो, वहीं पे रहो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी केस. दिस इज़ 100% ट्रू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आप पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो करो और आप सेम प्लेस के ऊपर ही रहो, आप सक्सेसफुल ना हो. दिस इज़ माई गारंटी. This is not going to happen. Law of average. In order to take chance and luck out of the equation, we need enough sheer volume in order to succeed no matter what. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. आपके पास एक कॉइन है, आप उसको फ्लिप करते हो 3 टाइम्स और तीनों बार ही हेड आता है. तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके पास एक मैजिकल कॉइन है जिसके ऊपर हर बार हेड आता है? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप उसी कॉइन को 1 मिलियन टाइम फ्लिप करते हो और हर बार हेड ही आता है, तब देयर इज़ अ चांस 50-50% वो भी कि आप कह सकते हो कि इस कॉइन के ऊपर हर बार हेड ही आता है. वाई? क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा हो उतने ही ज़्यादा हम एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसा कि एआई के पास बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर डाटा अवेलेबल होता है और उसको वो एनालाइज करके हमें जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है. एंड ये बात प्रूव्ड है कि ऐसा ही है. जब हम कोई भी काम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ करते हैं, बहुत बार बार एक ही काम को करते रहते हैं तो हम उसमें मास्टर हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करेंगे, कोई भी काम ज़्यादा परफेक्ट करेंगे. और इन कॉपीराइटिंग ये हमारे साथ किस तरह से रिलेट करता है? ये इस तरह से रिलेट करता है कि अगर हम बस 2 से 3-4 बार जो है वो क्लाइंट को रीच करें और हमें क्लाइंट ना मिले और हम बस कहें कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता मुझसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लाइंट नहीं मुझे मिला, मैंने रीच तो किया है. नहीं, आप बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट मेथड्स के साथ बार बार ट्राई करोगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. यू विल इवेंचुअली गेट देयर. ओके, सो योर थॉट्स आर लाइक डायरेक्शन दैट यू गिव टू द उबर ड्राइवर. आपकी जो थॉट्स है ना बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आप उबर ड्राइवर को डायरेक्शन देते. देखो, जैसे आप उबर ड्राइवर को कहोगे ना वहीं पे आपको ले जाएगा. अगर उसको कहोगे किसी दुखी शहर में ले जा तो वो दुखी शहर में ले जाएगा. अगर उसको कहोगे किसी हैप्पी सिटी में ले जा तो वो हैप्पी सिटी में ले जाएगा. सेम आपके माइंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है. अगर आप उसको नेगेटिव मैसेज दोगे तो वो नेगेटिव ही जो है वो आउटपुट भी देगा. अगर आपको पॉजिटिव मैसेज दोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. मैन हु सेड ही कैन एंड द मैन हु सेड ही कैंट बोथ आर राइट. डू यू नो अबाउट दिस? मतलब आप कहो मैं कर सकता हूँ और आप कहो मैं नहीं कर सकता, दोनों ही सिचुएशंस में आप बिल्कुल ठीक हो. सो द चॉइस is yours. So here we are with the part 2, fundamentals of freelance copywriting. What is copywriting? Copywriting is written words that persuade people to take action. Copywriting is used in ads and marketing promotion like email, sales pages and sales letter. Copywriting जो है वो लोगों को कन्विंस करती है, इंस्पायर करती है, कायल करती है आप किसी भी टाइप का एक्शन लेने पर रिलेटेड टू सेल्स. यूजुअली मतलब कॉपीराइटिंग जो है इसकी हेल्प के साथ हम जो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं. आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, उसके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है सारे का सारा कॉपीराइटिंग है. आप कोई भी एड्स देखते हो ऑनलाइन, उसके ऊपर जो कंटेंट होता है, इवन आप बाहर जाते हो आपको कोई बैनर दिखता है या किसी भी टाइप का प्रमोशन एड दिखता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पर आपको कोई बैनर दिखता है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भी कंटेंट लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग इज एवरीवेयर. आप जो ऑनलाइन टीवी के ऊपर एड्स देखते हो उसमें वो वीडियो स्क्रिप्ट में जो कुछ भी बोल रहा होता है वो कॉपीराइटिंग ही होती है और एक कॉपीराइटर उसको लिखता है. व्हाट डज अ कॉपीराइटर एक्चुअली डू? अ कॉपीराइटर write things like email, sales pages, ads, etc. Once you get good at writing copy and start making money, opportunities for more work like sales funnels and email marketing can be added to your offers as an upsell. Copywriter जो होता है वो email, sales pages and ads write करता है. जैसे जैसे वो इस काम में पावरफुल होता जाता है, पैसे बनाना स्टार्ट कर देता है, फिर और चीजें भी लाइक सेल्स फनल एंड ईमेल मार्केटिंग भी जो है वो उसको ऑफर की जाती है. तो ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इन कॉपीराइटिंग और ये सारा काम एक कॉपीराइटर करता है. What does this actually look like? ये एक्चुअल में सारा काम कैसे होता है? You reach out to potential client, get them on a sale call, agree on a deal, 8 emails for 2K. You send them an invoice with something like Stripe or PayPal, half upfront and then half when the project is complete. आप जो है पोटेंशियल क्लाइंट जिनको जरूरत है कॉपीराइटिंग की, डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं, आप उनको जो है वो अप्रोच करते हो, उनको सेल कॉल के ऊपर लेते हो, डील करते हो लाइक फॉर द एग्जांपल 8 ईमेल्स फॉर $2000 और इतने ही रेट होते हैं, डोंट वरी. फिर उसके बाद आप उनको इनवॉइस भेजते हो स्ट्राइप पेपल या जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल हो. यूजली इंटरनेशनली स्ट्राइप पेपल और वाइस काम करते हैं, और भी मेथड काम करते हैं लेकिन यूजली ये वाले हैं और किसी ना किसी तरीके से आप ये
पेमेंट मेथड प्रोवाइड करोगे? हाउ शुड यू स्टार्ट टुडे? आई स्ट्रांगली रिकमेंड you finish this video today if possible. Take notes and go through this course as if you paid 1000 for it, because realistically that's how much it's worth. It's worth more than 1000. देखो, मंथ्स की प्रिपरेशन और डेज की रिकॉर्डिंग और ये सारे के सारे रिसोर्सेज को भी एक साथ लेकर आने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है. सो ट्रीट दिस कोर्स रियली एक्सपेंसिव. पूरी अटेंशन के साथ आप चाहे वो इसको अप्लाई करना, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को आज ही कंप्लीट करके सारा कुछ प्रैक्टिकल करना. विदाउट प्रैक्टिकल इट्स nothing. What copywriting is not? Content writing. Copywriting is written word that persuade people to take action. Copywriting content writing बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे नहीं है कि आप जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट लिखवा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Copywriting is written word that persuade people to take action, immediate action, usually related to sales. Over exaggerating or being dishonest, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Usually कुछ लोग कहते हैं कि ये ना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, डिसऑनेस्ट बन रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं कॉपीराइटिंग में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल हम सच बोलते हैं, लेकिन इन अ वे दैट यूजर कैन रिलेट टू दैट थिंग. लिमिटेड टू दोज विद अ डिग्री और सर्टिफिकेशन. मतलब जो कॉपी राइटिंग है वो जिनके पास डिग्री है वही कर सकते हैं. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं है. कोई भी बंदा, यू आर 14 ईयर ओल्ड और 44 ईयर ओल्ड, यू कैन डू दिस. देयर इज नो डिग्री रिस्ट्रिक्शन. आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में आपको पे किया जाता है. दैट्स इट. एंड आपके माइंड में सैचुरेशन का जो क्वेश्चन घूम रहा हो ना, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने रिसर्च करके यहाँ पे एक नंबर फैक्ट्स ऐड किए हैं. हाउ मैनी फ्रीलांसर कॉपीराइटर आर इन द यूएस. फ्रीलांस कॉपीराइटर डेमोग्राफिक दिखा रहा हूँ आपको. देयर आर ओवर 4882 freelance copywriters currently employed in the United States. 53% of all freelance copywriters are women, while 46 are men. The average freelance copywriter age is 42 years old. 2.5 million businesses in the United States online हैं और total internationally 9.1 million online retailers हैं. मतलब कि United States में total 2.1 million online businesses हैं and every business need copywriter. Every single. और सिर्फ 4882 यूनाइटेड स्टेट में कॉपी राइटर्स हैं. यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट में यूएस में ऑनलाइन बिजनेसेस हैं और ये नंबर है कॉपी राइटर्स का. मतलब कि सैचुरेशन तो इसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकती. लिसन, आपको जस्ट 3 to 4 क्लाइंट्स चाहिए एक हेल्दी अमाउंट अर्न करने के लिए. सो इसमें सैचुरेशन का सवाल तो पैदा हो ही नहीं सकता. व्हाट डज अ कॉपीराइटर एक्चुअली डू? सम कॉपीराइटर ऑफर्स ईमेल सेल्स पेजेस एंड एड्स. कॉपीराइटर जो है वो ईमेल सेल्स पेजेस, एनीथिंग जो कि रिलेटेड टू सेलिंग होता है, यूजुअली वो प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पर फॉर द एग्जांपल मैंने एक सेल्स फनल एग्जांपल ऐड किया है, जस्ट आपको प्रैक्टिकली शो करवाने के लिए कि एक्चुअल में सेल फनल किस तरह की दिखती है. तो यहाँ पर एक पोस्ट है जे वॉलर की. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो हु इज जे वॉलर, ही इज एंड्रू टेट बडी. उसकी एक पोस्ट है, उसको हम रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से राइट की हुई है. ये कॉपीराइटिंग की एग्जांपल है. लाई ओपन, शुरू में ही एक काइंड ऑफ जैसे मछली के लिए हुक नहीं होती, सेम लाइक एक हुक कि ये पर्सन कह रहा है लाई ओपन. व्हाट डज दैट मीन? मतलब क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? माइंड को ना एक कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि मे बी ये सच बोल रहा हो, मे बी ये झूठ बोल रहा हो, कुछ भी, लेकिन ये हुक की तरह काम करेगा हमें इस पूरे के पूरे मैसेज को रीड करने के लिए. तो हमने पढ़ा लाई ओपन, उसके बाद जो है हमने रीड करना स्टार्ट कर दिया. द माइंड इज ट्रिकी, प्लेस कंफ्यूजिंग एंड डार्क. मल्टीपल टाइम्स अ वीक आई फाइंड माई सेल्फ इन द थ्रोज ऑफ एन इंटरनल बैटल. आई एम डिफीटेड. सिर्फ हम लाई ओपन पढ़ के आए थे ये जानने के लिए क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है पर्सन ये. तो इसलिए हम आए और हमने आगे रीड किया. एग्जीक्यूशन इज एज सिंपल एज लाइंग टू योर बी वर्ड वॉइस. वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ कपल ऑफ सेट्स एंड लीव. वी विल स्टार्ट द ईमेल एंड लीव इट एज इज ड्राफ्ट. मतलब कि आप अपने माइंड को कहो कि हम जो सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और थोड़े से सेट्स करके फिर छोड़ देंगे. हम कोई भी काम की ईमेल स्टार्ट करेंगे और एज अ ड्राफ्ट छोड़ देंगे. ये आप कहकर अपने माइंड को स्टार्ट करो. एटलीस्ट एक अच्छा काम करना स्टार्ट करो. अपने माइंड से झूठ बोलो, उसको ट्रिक करो. Lies. Learn to lie to the B word inside of you. If you don't, you will become that voice. You got this, man. Jay Waller. और फिर उसने नीचे जो है वो अपना न्यूज़ लेटर दिया है. ये बेसिकली पूरी की पूरी पोस्ट क्या है, ये एक मोटिवेशनल टॉक है. और उसके बाद उसने नीचे लिंक दे दिया है, अगर आप इस तरह की और मोटिवेशनल टॉक जो है वो सुनना चाहते हो तो आप इस न्यूज़ लेटर को ज्वाइन कर सकते हैं. सो उस न्यूज़ लेटर में क्या होगा, उस न्यूज़ लेटर में हम आपको फिर नेक्स्ट दिखाता हूँ एक ईमेल मार्केटिंग की एग्जाम्पल. ये एंड्रू टेट की ईमेल मार्केटिंग है, लेकिन जे वॉलर भी कुछ इसी तरह की जो है वो न्यूज़ लेटर ऑफर करता है. सो अब हम इसको भी गो थ्रू करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ईमेल मार्केटिंग कैसी दिखती है. डिस्पाइट ग्रोइंग अप पुअर, आई फाइंड माई सेल्फ हार्बरिंग डिसडेन फॉर द फाइनेंशियली underachieved. You are not trying. आप कोशिश नहीं कर रहे. I would know I started below you. Now I am in the top 0.01% of this planet. मतलब 1% भी नहीं, 0.01%. Listen, आपको एंड्रॉइड पसंद हो या ना हो, regardless of judging, हम पूरी की पूरी ईमेल रेड करते हैं. That does not happen. There is no such thing as trying and failing for 10 years. Absolutely 100% right.
That is not real. That does not happen. The hardworking, sober, critically thinking, charismatic, broke person doesn't exist. Not for long. They all get rich eventually. Somehow, after years of spending 24 hours a day with the singular goal of becoming financially wealthy, after years of hard work, singular focus, and critical thinking, they all find the solution eventually. You are broke. You have no one to blame but yourself. Are you going to humble yourself and change who you are, or remain like most people, broke, lazy, and dumb? इट्स योर चॉइस। यहाँ पर एंड्रू टेट क्या कह रहा है, यहाँ पर वो दो ऑप्शन दे रहा है, या तो जैसे हो बर्बाद, लेजी, उसी तरह रहो, या फिर यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ। यू आर पुअर बिकॉज ऑफ हु यू आर, फैक्ट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वट एवर एक्सक्यूजेज यू टेल योर सेल्फ एट नाइट। You are poor because of who you are as a man. Luckily for you, you can change that. Become the hardworking, sober, critically thinking, charismatic, broke person. I guarantee you won't stay broke long. If you need help, join the real world. सो फिर उसने नीचे लिंक दे दिया रियल वर्ल्ड को ज्वाइन करने का, अगर कोई रियल वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहे तो। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक पोस्ट है जो कि न्यूज़लेटर ज्वाइन करवा रही है यूज़र्स को, और फिर जो है वो उस न्यूज़लेटर में क्या है, न्यूज़लेटर में अगेन फिर मोटिवेशनल टॉक है जो कि लोग चाहते हैं उससे, एंड्रू टेट से यही सुनना चाहते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि डायरेक्ट कह दिया उसने अपनी पोस्ट में कि ज्वाइन द रियल वर्ल्ड और गो टू चेकआउट एंड पे द अमाउंट। ऐसे सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत ज़्यादा डाउट्स और बहुत ज़्यादा अनक्लैरिफिकेशन होती है यूज़र के माइंड में। वो सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है, एंड दिस इज़ नेसेसरी प्रोसेस। इसके बिना सेलिंग हो ही नहीं सकती। यूज़र को पहले कन्विंस किया जाता है, यूज़र को बताया जाता है कि वो क्या बाय करने जा रहा है, इस तरह से उस यूज़र की लाइफ इसके साथ बेटर होगी, ये यूज़र को अच्छे से बताया जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक ऊपर पोस्ट है जिसमें जो है वो यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जो कि उसकी लाइफ को बेटर बना रही है। उसके बाद आया न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर में अगेन मोटिवेशनल स्पीच है जो कि यूज़र को कन्विंस कर रही है, उसको एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है, उसको अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करने की एडवाइस दे रही है। उसके बाद उसको वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, और वेबसाइट के ऊपर क्या है, वेबसाइट के ऊपर अगेन कॉपीराइटिंग कंटेंट है जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। फाइनल थॉट्स, मनी मेकिंग इज अ स्किल लाइक एवरी अदर स्किल, इट कैन बी लर्नड एंड द स्पीड एट विच इट इज लर्न डिपेंड्स ऑन योर कोचेज एंड द लर्निंग environment you are taught in. Our coaches know the business model they teach, they know what it takes to be profitable, and they are the first to identify and utilize new disruptive technologies and strategies whenever they appear. The real world is the ultimate all-in-one learning platform guiding you from making your first dollar online to scaling into a multi-million dollar business. There is no better place on the planet to learn how to make मनी ऑनलाइन टुडे। यहाँ पर अगेन यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि रियल वर्ल्ड इज द अल्टीमेट सोल्यूशन इफ यू वांट टू डू समथिंग विद योर लाइफ, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक मनी। और हमारे प्रोफेसर इज द बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड। वो जानते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, और सबसे पहले दे आर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एनी न्यू टेक्नोलॉजी। ये है एक सेल्स फनल की एग्जाम्पल के पहले यूजर को जितना हो सके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन अ वे दैट यूजर कैन रिलेट। मतलब कि उसको बताया जाता है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ को बेटर बनाने जा रही है, किस तरह से आपको बेनिफिट देगी। बट वाई डू पीपल बाय कॉपीराइटिंग फॉर सो मच मनी? इट्स बिकॉज कॉपीराइटर आर पेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू दे प्रोवाइड rather than the time they work. This is the difference between work based pricing and value based pricing. Listen, अगर बहुत ज्यादा वर्क करके ये अमाउंट बनती होती तो सबसे ज्यादा जो डे लेबर का काम करते हैं, सबसे ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनके पास ज्यादा पैसा होता। यहाँ पर वैल्यू बेस्ड जो है वो अमाउंट पे की जाती है कॉपीराइटर को। इफ योर कॉपी मेक्स अ बिजनेस 10 टाइम ऑफ thousands of dollars which it easily can, then it's not ridiculous to be compensated a few $1,000 a month, which is almost nothing to big companies. और यहाँ पर एक डायग्राम है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो सेल पेजेस बनवाती हैं कॉपीराइटर से, उनका जो वो सेल पेज जो आप उनको बना कर देते हो ना, वो सिंगल सेल पेज उनको 10, 20, 50, 100 के $1,000 तक की मंथ की सेल करके देता है वो। और उसके लिए $1,500 एक कॉपीराइटर को पे करना, इट्स लिटरली अ स्टील। बिल्कुल भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती $1,500 उस पेज के लिए पे करना जो उनको इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में सेल प्रोवाइड करेगा। इसलिए कॉपीराइटर को इतनी ज्यादा अमाउंट पे की जाए क्योंकि उनका लिखा हुआ सेल पेज उनको thousands of dollars की सेल जनरेट करवा के देता है। When should I expect result? My goal for this video is to get you paid in the next 30 days and show you how to make a life-changing amount of money within the next 90 days. With that being said, if for some reason you were to miss each of these milestones at the end of today's lesson, I am going to share with you how I can help you get unstuck. Listen, सबसे पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, it is impossible। जैसा कि ऊपर न्यूज़लेटर में भी आपने रीड किया कि it is impossible if you try and follow all the steps and you fail.
इट इज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली मुमकिन ही नहीं है एक ऐसा हार्ड वर्किंग पर्सन जो सारा कुछ करता है प्रॉपरली जैसे उसको करना चाहिए, एक्शन लेता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को अप्रोच करता है, प्रैक्टिकली लर्न करता है, ये पूरे का पूरा ट्यूटोरियल वॉच करता है, इसको अच्छे से जो कुछ इसमें बताया जाता है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, बार बार देखता है, हर चीज को इंप्लीमेंट करता है, उसके बावजूद वो फेल हो। This is impossible. Part 3, how to write copy that sell like crazy. Believe it or not, but a large portion of copywriting that we see on a daily basis from 1 million to 10 million businesses are terrible and ineffective. How to write copy that sell like crazy. Believe it or not, but a large portion of copywriting that we see on a daily basis from 0 to 10 million businesses are terrible and ineffective. In this section, you'll learn how to become a genuinely great copywriting capable of persuading people to passionately taking out their wallet to buy from you. कैसे एक ऐसी कॉपी लिखी जाए जो कि लोगों को कन्विंस करे, इंस्पायर करे, कायल करे कि वो अपना वॉलेट निकाले और आपसे ही, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट वो बाय करें. राइट योर फर्स्ट ईमेल विद मी. व्हाट यूल नीड: अ niche you somewhat know about, a specific product or service, a notepad and pen to remember key points. You can watch me walk through the email creating process for now, but it's crucial you come back and do this yourself and follow along आफ्टरवर्ड. यस, अब हम एक साथ अपनी पहली ईमेल लिखने जा रहे हैं. उसके लिए आपको चाहिए एक नीश जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो. कोई भी प्रोडक्ट जो कि एक्चुअल में प्रोडक्ट हो, बिल्कुल इमेजिनरी थिंग ना हो, एक्चुअल में प्रोडक्ट वो कुछ भी हो सकता है. कोई ऑनलाइन से रिलेटेड चीज हो सकती है या ऑफलाइन, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, या ऑनलाइन में ई कॉम से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज है, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, या फिर आपको कोई ये एलईडी से रिलेटेड नॉलेज है, ये माइक से रिलेटेड, या ग्लासेस से रिलेटेड, या सेलफोन, या एनी बॉडी पार्ट, कुछ भी. वो कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकती है जिसके रिलेटेड आपको एटलीस्ट नॉलेज हो. वो पेंसिल भी इवन हो सकती है, एनीथिंग बट द प्रोडक्ट यू शुड नो अबाउट. उसके बाद आपको एक पेन और नोटपैड चाहिए जिसके ऊपर आप सारे की पॉइंट लिखोगे. लेट्स गो. ओके, सो हियर वी आर विद द listicle email template. Quick explanation: the listicle email works by giving actionable value that the reader can use while manufacturing desire in whatever is inside the CTA. CTA means call to action, like click here, buys this, anything like that. The email should be used to gain trust and build relationship with the reader. Always keep in mind, email selling के लिए बिल्कुल भी नहीं होती. ईमेल होती है यूजर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बनाने के लिए, ना कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के लिए. बिल्कुल भी नहीं होती ईमेल. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि परफेक्ट ईमेल के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉइंट है जो कि एक ईमेल में हूँ तभी वो एक अच्छी ईमेल बनती है. तो यहाँ पर ये डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट क्वेश्चंस मेंशन है. ऑलवेज जब भी आप ईमेल राइट कर रहे हो ना, दिस इज योर गो टू गाइड. मतलब कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस का ऑलवेज मेक श्योर करोगे कि आंसर करो सब के सब. व्हाट वैल्यू इज बीइंग गिवन, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर द एग्जांपल यहाँ पे हाउ टू गेन अ लॉट ऑफ मनी, कोई और भी हो सकती है, लाइक हाउ टू मेक मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू बी अ गुड फोटोग्राफर, एनीथिंग. ये ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करो. व्हाट वैल्यू इज बीइंग गिवन, इस ईमेल में यूजर के लिए क्या वैल्यू है. व्हाई इज द वैल्यू इंपॉर्टेंट, गेट डिस्ट्रप्टिव ऑन व्हाट द गोल ऑफ द ईमेल विल टीच देम. क्यों ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज क्लियर दिस एज वेल. फॉर द एग्जांपल, बिकॉज मोस्ट बिगिनर गोज वेस्ट टाइम ट्राइंग टू गेट थिंग्स figure out. If you do everything in this email, not only will people barely recognize you and people will genuinely wonder if you are on gear. यहाँ पे यूजर को क्लियर किया जा रहा है कि अगर इस ईमेल में जो कुछ भी इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, इंस्ट्रक्शन, अगर उनको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करेगा तो पीपल विल बेयरली रिकॉग्नाइज हिम. कंप्लीटली उसकी बॉडी जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगा. द 3 वैल्यू टिप्स विद एक्सप्लेनेशन. हमेशा यूजर को वैल्यू टिप्स जरूर प्रोवाइड करो. वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए फिटनेस से रिलेटेड है, ये मनी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ये फोटोग्राफी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड. तो यहाँ पे पहला क्या पॉइंट है, ट्रेन लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. एवर वंडर व्हाई डूड्स in prison look like the Hulk, yet they are under the worst condition for building muscle yet. The answer is because they have to get ripped to survive. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया, फिर उसके बाद रीजन. एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम जब भी आप पॉइंट मेंशन करोगे उसके पीछे रीजन भी जरूर मेंशन करोगे. क्योंकि देखो, फ्री में एडवाइस हर बंदा फ्री में एडवाइस देना चाहता है, लेकिन लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनको हर कोई हमें एडवाइस देता रहे. मतलब आप डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस हो कि ऐसा कर लो. नहीं, जो आपने पॉइंट मेंशन किया है, जो फैक्ट मेंशन किया, उसके पीछे की रीजन भी बताओ. जैसे यहाँ पे क्लियर कट रीजन बताई हुई है कि ट्रेन लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, और फिर उसके पीछे उसकी रीजन भी क्लियर की हुई है. एंड ऑलवेज मेंशन द रीजन every single time. Get consistent. Second point, if you want why they do you brush them for 5 hours one day a week or 2 minutes for 2 to 3 times every day. Another point और उसकी reason, you can't make up for consistency with short burst of action. मतलब कि आपको consistent होना ही पड़ेगा. Without consistency कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. और उसके पीछे reason दिया है
teeth की। Vomit king, nothing will kill your gains faster than any injury because any injury is a quick way to ensure you can't get consistent. See point 2, फिर point 2 मेंशन किया कि किस वजह से मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस विदाउट दिस। फिर उसके बाद मेन पॉइंट कि किस तरह से जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी डिजायर आउटपुट है इस ईमेल से, उसके साथ किस तरह से यूजर को इंगेज किया जाए। मतलब हम कुछ सेल कर रहे हैं, यूजर को कहीं पे नेविगेट करना चाहते हैं, CTA हमारा कॉल टू एक्शन यहाँ पे फुलफिल करेंगे इस सेक्शन में। बट ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस विदाउट अ न्यूट्रिशन प्लान टेलर टू यू। इट डजंट मैटर इफ यू ट्रेन योर फेस every day, if your nutrition isn't dialed in, you're going to be missing out on gains. And it's not enough just to leave it up to chance. You can't just eat a random amount of chicken and rice every day and expect to make progress. But I get it, coming up with a meal tailored to your goals, weight and training regimen can feel like rocket science. मतलब कि मैं समझता हूँ कि एक पूरा प्रॉपर गोल बनाना, पूरे न्यूट्रिशन का जो है वो सारा एक अपनी पूरी डाइट को एक रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, रॉकेट साइंस की तरह है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव यू, यहाँ पर हम उसको अगेन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। Here's access to a free nutrition plan call where we will call you, chat with you and create a nutrition plan for you for free. Because we figure when we help you pack on muscle and shortcut your way to your dream body, then you'll be interested in working with us in the future. And if not, that's cool too. Listen, this is the perfect email. पहले यूजर को क्लियर किया गया क्या उसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको क्लियर करेंगे कि कितनी ज़्यादा ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है और क्या उसको इस ईमेल को रीड करने के बाद मिलेगा। हम रिजल्ट उसको पहले थोड़े से डिफाइन कर रहे हैं, उसको इमेजिन करवा रहे हैं कि क्या उसको मिलेगा इस ईमेल को रीड करने के बाद। फिर उसको हम 3 वैल्यू टिप्स दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या उसकी रीज़न है हर एक पॉइंट की, ये भी हम बता रहे हैं उसको। फिर उसके बाद जो हमारा डिज़ायर आउटपुट हम इस ईमेल से चाहते हैं उसके साथ उसको रिलेट कर रहे हैं, वो कैसे एक न्यूट्रिशन प्लान की उसके रीज़न दे के फिर वो न्यूट्रिशन प्लान भी हम उसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिजायर आउटपुट है फ्रॉम दिस ईमेल इज टू गेट दैट पर्सन ऑन अ कॉल। ये हमारा डिजायर आउटपुट है और बेसिकली उसमें फ्री प्लान बताया जाएगा, लेकिन एक सेल्स कॉल होगी, मतलब उसको फ्री में जो है पूरा प्लान बताया जाएगा। उसके बाद उसको कहा जाएगा कि उसको पहले तो हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद फिर उसको कहा जाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हो। तो इसी तरह से एक परफेक्ट सेल कॉल होती है, इस तरह से नहीं कि हमसे बाय करो। अब हम प्रैक्टिकली इस ईमेल को देख लेते हैं जो अभी हमने ऊपर सारे इंग्रेडिएंट देखे हैं। सो सब्जेक्ट लाइन, हाउ टू पैक ऑन 9 pound ऑफ मसल इन 4 months। परफेक्ट सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन है। इंस्टेड ऑफ इस तरह से कह देना कि हाउ टू गेन मसल्स, वो बहुत ज्यादा जेनेरिक सी सब्जेक्ट लाइन हो जाती है और इस तरह से बिल्कुल भी यूजर कन्विंस नहीं होता, ये क्लैरिटी नहीं देती हाउ टू गेन अ लॉट ऑफ मसल, doesn't make any sense. But specific, the more specific you get, the better it is. How to pack on 9 pound of muscle in 4 months, ये कुछ उसको स्पेसिफिक नंबर यूजर को शो करवा रही है। Always better to show numbers. A first name, the picture below is the difference that just 10 pounds make। फिर उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है बिफोर और आफ्टर की, 4 मंथ लेटर की, और क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। 4 मंथ पहले बिल्कुल ऐसे सूखा सड़ा था, कभी जिम गया ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा पर्सन, और 4 मंथ के बाद ही इज लुकिंग लाइक pretty damn like model. So if you want to go from whatever body type you are now to a rock solid holistic model physique within the next 4 months, यहाँ पे again specifically उसको mention करके उसको imagine करवाया यूजर को कि एक solid holistic model physique, ऐसे बिल्कुल generic सा नहीं कह दिया to a strong person, उसको proper imagine करवाया कि एक fitness model तरह का वो 4 months में दिखेगा वो person। Then here are the 3 top pieces of advice that will help you like your life depends on it. Have you ever wondered why some dudes in prison literally look like they are a couple weeks out from a bodybuilding show, even though their nutrition consists of stale bread and a couple eggs? They have terrible workout equipment and zero guidance as far as personal training. They still pack on lean muscle mass seemingly overnight because they train like their life depends on it. The answer is because they train 10 times harder than any gym rat. Why? Because their life literally depends on it. And this eat or be eaten mentality is what pushes them far beyond where other would stop. मतलब कि मरो या मारो. This is something you can use it your advantage too. We all know that one dude who's gone to the gym for years yet doesn't look like he lives. और यहाँ पर हमने कुछ उसको रिलेटेबल शो करवाया। We all know that one dude who's gone to the gym for years, ये उसके साथ रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि हम सब जानते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि काफी सालों से जिम तो जा रहा है लेकिन बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। The reason is because he just goes through the motion. Trust me when I tell you, intensity makes all the difference. So get in the gym and don't start counting reps until it hurts. No pain, no gain. Get consistent. Let me ask you a question. If you want white teeth, should you either brush your teeth for 5 hours one day a week or brush your teeth 2 to 3 times every day? Again, यहाँ पर हम उसको एक क्वेश्चन और उसके साथ 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। यहाँ पर इसलिए हमने इस तरह से लिखा ताकि यूजर जो है कंटिन्यू रखे अपनी रीडिंग।
The answer is obvious, yet you still see some people trying to pack on muscle but they aren't consistent in the gym. Oftentimes they resort to short bursts of long workouts in an effort to make up for their inconsistency, but this never works. Do yourself a huge favor, lift at least 4 to 5 times a week, otherwise you're cutting your gain in half. Form is king. And speaking of consistency, wanna know the one way to ensure you can't keep up with your workouts? Getting injured. Try working out anything upper body when you have a torn elbow. Trust me, not fun. Not to mention if you go to gym just to swing around some weights, they are too heavy just to stroke your own ego. मतलब जब जिम जाओ तो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बस जाओ, ज्यादा वेट लिफ्ट मत करो, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी ना करो. इंस्टेड नॉर्मल वेट उठा के प्रॉपर वे में ज्यादा से ज्यादा reps करो. Your muscle aren't going to be benefit at all anyway. The best thing you can do is to leave your ego at the door, lighten up the weight and perform slow and controlled reps. Doing these 3 simple things will ensure you blow up in the next 4 months. But there is still one problem. यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पर हम CT अपना इस गेम में लेकर आ रहे हैं. None of these 3 steps matter if you don't have your nutrition dialed in. And I don't mean just eating chicken and rice every day and hoping you are getting enough macronutrition. Nutrition cannot be left up to chance, but I get it. Nutrition can turn into rocket science real quick. That's why I wanted to give you a free nutrition plan tailored to you. One of my personal coaches will hop on a one-on-one call with you and figure out all the complicated calculation for you. Just click this link to schedule a call. But I have to warn you, we are running out of spots quickly. So if there is still any slots available, I wouldn't wait. Talk to you soon. Sign off. Sign off means कि आप यहाँ पे अपना नेम जो है वो मेंशन कर दोगे. So यहाँ पर हमने अपना कॉल टू एक्शन दिया और साथ में स्केर्सिटी भी क्रिएट की जो कि ओरिजिनल है. फेक स्केर्सिटी बिल्कुल भी मत क्रिएट करना. मतलब इस तरह से कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो खत्म हो जाएगा या फिर हमारी ई बुक है वो खत्म हो जाएगी. मतलब क्या, कैसे हाउ कैसे आपकी ई बुक खत्म हो सकती है, ऑनलाइन कोर्स खत्म हो सकता है? वो एक सिंगल ऑनलाइन कोर्स एक सिंगल वीडियो है और ई बुक एक सिंगल कॉपी है जो जितनी मर्जी आप क्रिएट कर लो. कैसे वो खत्म हो सकती है? इस तरह की फेक स्केर्सिटी जब क्रिएट करोगे ना तो डेफिनेटली जो यूजर है वो यही सोचेगा ये बस मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, नथिंग एल्स, देयर इज नो वैल्यू. लेकिन यहाँ पर हमने ओरिजिनल स्केर्सिटी क्रिएट किया है बाय टेलिंग हिम कि हमारे पास फ्यू कोचेज हैं जो कि कॉल ले सकते हैं, अगर कोई स्पॉट अवेलेबल है तो बुक इट नाउ. और यहाँ पर स्टार्ट में इस फोटो के साथ उसको क्लियर वैल्यू प्रोवाइड किया कि किस वजह से ये ईमेल पूरी की पूरी रीड करना इज वर्दी, कि उसको क्यों ये पूरी की पूरी ईमेल रीड करनी चाहिए, ये यहाँ पर हमने क्लियर किया है. हैकिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, द 5 फंडामेंटल ट्रिगर्स इन द ह्यूमन माइंड दैट इंस्पायर पीपल टू टेक एक्शन राइट this second. The 3 main stages of any copy. 3 main stages of any copy is disrupt, intrigue, and click. In this section, you learn to capture, keep, and send your reader attention to the next desired action. The main questions when something comes across someone's attention is, what is this? Why should I keep reading or watching? What am I supposed to do next? जो main 3 stages हैं any copy की, वो based on these 3 questions. जैसे मैंने आपको ऊपर पोस्ट में दिखाया था lie often, उसकी पहली लाइन थी what is this, जिसने हमें थोड़ा सा हिलाया कि ये पर्सन इस तरह से क्यों कह रहा है. सबसे पहले हुक, मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ग्रैब करे यूजर की अटेंशन, ये कि व्हाट इज दिस, एग्जैक्ट व्हाट इज दिस. फिर उसके बाद वाई शुड आई कीप रीडिंग दिस, मतलब कि यूजर के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर रहना चाहिए, वाई शुड आई कीप रीडिंग दिस, मतलब कि कुछ ना कुछ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे मूवी होती है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. फिर उसके बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू नेक्स्ट, मतलब कि उसके बाद वो नेक्स्ट क्या करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सबसे पहले हुक, फिर रिटेन, सबसे पहले यूजर की अटेंशन ग्रैब करो, उसके बाद उसको बनाए रखो उस अटेंशन को, उसके बाद रिवॉर्ड के उसको सारी जो उसने अटेंशन इतनी देर दी है उसका उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, जो भी आप चाहते हो वो नेक्स्ट. हाउ टू ग्रैब अटेंशन 5 मेथड. अटेंशन इज द करेंसी ऑफ द न्यू इकोनॉमी, दैट्स व्हाई अटेंशन हैज नेवर बीन सो सॉट आफ्टर येट सो हार्ड टू अटेन. ये जो न्यू ऑनलाइन वर्डन है इसके अंदर जिस पर्सन के पास ज्यादा अटेंशन है वो पैसा बना रहा है. इट्स सिंपल, मतलब किसी भी टाइप का वो बिजनेस, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो अलीबाबा है, कोई भी है, जिसके पास ज्यादा अटेंशन है, जिसके पास ज्यादा ऑडियंस है, वो बिजनेस ज्यादा पैसे बना रहा है. हाउ टू यू ग्रैब योर रीडर बाय द थ्रोट एंड मेक देम डू अ डबल टेक. किस तरह से आप अपने रीडर को पकड़ोगे, उसकी अटेंशन ग्रैब करोगे और उसको कन्विंस करोगे प्रोडक्ट बाय करने पे. नंबर 1, चैलेंज देयर बिलीव्स. फॉर द एग्जांपल, स्क्वाट्स आर टेरेबल फॉर क्वाड डेवलपमेंट. स्क्वाट एक एक्सरसाइज है लेग्स के लिए जो कि काफी हेल्पफुल होती है, लेकिन यहाँ पर हम यूजर के बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हैं. हम उसको कह रहे हैं स्क्वाट्स आर टेरेबल फॉर क्वाड डेवलपमेंट फॉर ग्रैबिंग हिज अटेंशन. जब हम इस तरह से कहेंगे तो ये उसके माइंड में एक किस्म की क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करेगा, मतलब मे बी ही इज राइट, मे बी इज रॉन्ग, मतलब कि इस तरह से क्यों कह रहा है स्क्वाट्स आर टेरेबल, मे बी इसी वजह से मेरी लेग्स ग्रो नहीं कर रही, या फिर कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी और ये चीज उसकी अटेंशन ग्रैब करेगी. उसके बाद आस्क अ 2 ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट्स द बेटर गोल, 100K या 10K. उसके बाद ये देखने के लिए कि मैंने क्या डिसाइड किया यूजर रेट करेगा. बी रिलेटेबल, हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग मनी ऑनलाइन बट डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड केप्ट रनिंग इनटू स्कैम्स. रिलेटेबल क्वेश्चन पूछो, समथिंग
लाइक दिस। आपने कभी ऑनलाइन अर्निंग की कोशिश किया और आप किसी स्कैम में जो है वो फंस गए हों, मतलब कि ये उसके माइंड में ना मे बी इस तरह की सिचुएशन उसने भी फेस की हो सकती है कि उसने कभी कोशिश की हो और बहुत सारे स्कैम्स में और इधर उधर जो है ना वो मतलब बना ना पाया हो पैसे। तो ये उसके साथ रिलेटिबिलिटी क्रिएट करेगा। आज का पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन, व्हाई इज इट द एवरेज मिलियनर इज लेस एजुकेटेड देन एवरेज। ये अगेन उसके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि क्यों मिलियनर्स जो हैं वो ज़्यादातर, क्यों मोस्टली जो ऑनलाइन मिलियनर्स हैं वो लेस एजुकेटेड हैं, वो ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, here's how to get hired by Netflix and make $24 from home with no experience. Always make strong promise. And for the example, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर टिकटॉक के ऊपर thousands of reels हैं और अच्छे खासे उन रील्स के ऊपर व्यूज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड प्रॉमिस किया जा रहा है $24 पर आवर। नाउ हमने उसकी अटेंशन तो ग्रैब कर ली। हाउ टू होल्ड अटेंशन विद इंट्रिग। नाउ दैट यू हैव अर्नड समवन्स इनिशियल अटेंशन, दिस इज वेयर यू कीप देयर अटेंशन व्हाइल सेटिंग देम अप टू बी परसुएडेड टू टेक एक्शन इन द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि हमने उसकी अटेंशन तो ग्रैब कर ली, अब हम उसको होल्ड कैसे करेंगे। वी डू दिस बाय मेकिंग ओपन लूप्स इन ऑर्डर टू यूज आवर रीडर क्यूरियोसिटी एज फ्यूल। ओपन लूप क्रिएट करेंगे इन्फॉर्मेशन के और उसकी जो क्यूरियोसिटी है ना उसको एज अ फ्यूल यूज करेंगे। थिंक ऑफ दिस इंट्रीग एज एन इच। यू टेल द रीडर यू हैव समथिंग दे हैव एंड दे फील फिजिकल डिस्कम्फर्ट अंटिल दे नो एग्जैक्टली व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज। इसके बारे में आप इस तरह से सोचो कि खारिश की तरह, जैसे हमारे खारिश हो रही हो, जब तक हमारे वो खत्म ना हो जाए हम बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील करते हैं, हम कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। तो इसको भी कुछ इसी तरह से सोचो। थिंक ऑफ इट ऑलमोस्ट लाइक अ क्लिफ हैंगर ऑन योर फेवरेट शो। एग्जाम्पल, स्क्वाट्स आर टेरिबल फॉर क्वाड डेवलपमेंट, हियर्स व्हाई। मतलब कि हम उसको कह रहे हैं कि स्क्वाट की जो एक्सरसाइज है लेग्स की वो है तो टेरिबल, और हम उसको फिर अगेन उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लूप ओपन कर रहे हैं वो ये जानने के लिए कि इसने ऐसा क्यों कहा, वो अगेन रीड करेगा। सी आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दैट स्क्वाट्स वर द सीक्रेट टू ट्री टर्न लेग्स गिवन इनटू व्हाइल द लूप इज स्टिल ओपन। हम उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर एक और बात भी है, ऐसा नहीं करोगे कि आप ये कहोगे कि स्क्वाट्स आर टेरिबल दैट्स व्हाई योर लेग्स आर नॉट ग्रोइंग इन द एंड। नहीं, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, ये तो खत्म हो गया यहीं पे। ऐसा नहीं करना, हम उसको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे लेकिन लूप भी ओपन रहेगा। ओके, हार्वर्ड स्टडी शोज दैट स्क्वाट्स मूवमेंट एक्चुअली डिक्रीज मसल साइज इन द लेग्स। अगेन हम उसको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इन रियलिटी स्क्वाट्स तक हैक स्क्वाट स्प्लिट स्क्वाट नन ऑफ देम आर ट्रूली ऑप्टिमल। अगेन हमने और इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया है, ये हमने उसकी अटेंशन को बनाए रखा है। लूप स्टिल ओपन है लेकिन हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको खारिश हो रही है स्टिल। हाउ टू टर्न अटेंशन इनटू एक्शन। अब हम सीखेंगे कि हमारे पास उसकी अटेंशन तो है, वो रीड तो करे, अब हम उस अटेंशन को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। नाउ दैट वी हैव ग्रैब्ड आवर रीडर अटेंशन दैट ओपन द लूप टू कीप देम रीडिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द लूप एंड डायरेक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन टू टेक। एग्जाम्पल, द वे आई एक्चुअली बिट legs that literally can't fit in jean anymore is from doing what I call the anti squat training intensive loop। यहाँ पर हमने उसको अगेन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और एक और लूप ओपन कर दिया एंटी स्क्वाट ट्रेनिंग के साथ। मतलब अब ये जानने के लिए कि ये एंटी स्क्वाट ट्रेनिंग क्या है, यूजर अगेन मोर रीड करेगा। इट वर्क्स बाय यूटिलाइजिंग मोर टारगेटेड लेग एक्सरसाइज टू बिल्ड मोर मसल इन लेस time and half the effort. If you want access, click here to get huge legs without ever doing another squat again। मतलब हम उसको कह रहे हैं कि एंटी स्क्वाट ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो क्लिक द लिंक बिलो एंड नो मोर। और यहाँ पर ये डायग्राम इस चीज को अच्छे से क्लियर कर रही है। ये डायग्राम बता रही है कि एवरी सोल्यूशन कम्स विद प्रॉब्लम, मींस कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपने बता दिया लेकिन वहां पर एक और प्रॉब्लम भी है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। मतलब कि ऐसा ऑलवेज होता है कि हमने एक चीज सॉल्व कर दी लेकिन वहां पे कोई ना कोई और प्रॉब्लम भी जरूर होगी। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, आपने एक चीज तो फिक्स कर दी है लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ आप एक और चीज और निकाल लोगे जो सोल्व करने वाली है। फॉर द एग्जांपल, हाउ टू मेक मनी, नाउ यू नो हाउ टू मेक मनी, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू डबल दिस मनी, हाउ टू इन्वेस्ट दिस मनी। तो ये थी एक एग्जांपल। So next, the duality of decision, logic versus emotion. People buy with their emotion and rationalize with logic. Think of it this way, मतलब लोग कोई भी चीज जब लॉजिक और इमोशन का कॉम्बिनेशन बनता है ना तो वो चीज लोग बाय कर लेते हैं। फॉर द एग्जांपल, द आइसक्रीम पार्लर इफेक्ट, बाइंग अ डबल स्कूप ऑफ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर is an emotional decision triggered by the tantalizing aroma and appealing display. You rationalize it later by telling yourself calcium in the ice cream is good for your bones। मतलब आप आइसक्रीम का जो डिसीजन है उसको इस तरह से रैशनलाइज करते हो। मे बी आप डाइट के ऊपर भी हो कि आज चलो मैंने और चीजें तो नहीं खाई, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लूंगा तो क्या होगा, इसमें जो कैल्शियम है वो मेरी लेग्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने इसको रैशनलाइज कर लिया और मैं थोड़ी सी आइसक्रीम से मर थोड़ी जाऊंगा। ईटीसी। द स्मार्टफोन सिडक्शन, श्योर आई जस्ट बॉट द न्यू आईफोन because it will signal my status but it will also make me more productive at work. 5 more minutes can't hurt, right? I'm super tired and not ready to get up yet. Besides, the exercise will allow me to wake up, restore and more productive. These are all example of how we sell ourselves using the emotional and logical combo, logic action emotion। ये डायग्राम अगेन क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है कि जब लॉजिक और इमोशन का कॉम्बिनेशन होता है तब हम कोई भी एक्शन किसी से भी परफॉर्म करवा सकते हैं। आपने कभी सोचा ये जो टेररिस्ट होते हैं धमाके तक कर देते हैं
कैसे अपनी जान तक, खुद की अपनी जान दे देते हैं किसी के कहने पे, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड कैन मेक यू, ब्रेक यू, कैन टच योर सोल। वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। जब उसको ट्रेन करने वाला लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरह से सेटिस्फाई कर देता है तो वो अपनी जान तक दे देता है। So next, the satisfying emotional side of the brain. The best way to evoke emotion is to appeal to people's most primal desire. Here are some ways how. Storytelling. All humans are easily hooked in by a good story. It's one of the best way to grab attention and get someone to listen. Storytelling जो है ना हिस्ट्री में शुरू से is the best way to explain things and grab attention of the users. When you describe things in your copy, you should always paint a vivid picture by using ultra specificity. मतलब कि आप जो यूजर के माइंड में ना क्लियर इमेजिनेशन उसको प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने आपको ऊपर ईमेल की एग्जांपल देते हुए बताया था कि हाउ टू गेन 9 पाउंड मसल जस्ट इन 4 मंथ, लुक लाइक अ फिटनेस मॉडल। हम उसके माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट कर रहे थे। इस तरह ऑलवेज जो है ना यूजर को क्लियर इमेजिनेशन प्रोवाइड करो। हाईलाइटिंग बेनिफिट्स ओवर फीचर्स। अ फीचर इज समथिंग लाइक एन 6 bionic chip phone. The benefit is that you can now surf the web or play games on your phone something smoother than ever before. Benefits highlight करो over feature, मतलब कि 6 bionic phone chip। लेकिन जब हम यूजर को ये बताएंगे कि अब आप इजीली गेम्स खेल सकते हो और वेब सर्फिंग कर सकते हो बहुत इजीली, तो ये ज्यादा उसको क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेड ऑफ वो बायोनिक चिप पता नहीं क्या है वो। डिस्क्राइब फियर एंड ड्रीम स्टेट। दीज आर हाईली इमोशनल ट्रिगर दैट मेक अ ड्रास्टिक चेंज इधर गुड और बैड इन पीपल्स माइंड। मतलब कि फियर और ड्रीम स्टेट दोनों डिस्क्राइब करो। फियर स्टेट क्या होगी, समथिंग लाइक दैट के, एंड फॉर द एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक मोटा बंदा है, यू विल लुक बैड एंड एवरीवन बुलीज यू, और उसकी ड्रीम स्टेट कुछ इस तरह से होगी, गर्ल्स विल लाइक यू, यू विल लुक हैंडसम, समथिंग लाइक दैट। ये उसकी ड्रीम स्टेट होगी और उसकी फियर स्टेट होगी। तो ये उसको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ऑलवेज प्रोवाइड दिस एज वेल। यूज अर्जेंसी एंड स्केर्सिटी। द फियर ऑफ मिसिंग आउट इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इमोशनल ट्रिगर्स। ह्यूमन वोंट टेक एक्शन अनलेस दे आर रीजन टू डू इट राइट नाउ। ऑलवेज स्केर्सिटी क्रिएट करो और स्केर्सिटी जेन्युइन लगनी चाहिए। ऐसे फजूल किस्म की स्केर्सिटी ना क्रिएट करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जहाँ ऑनलाइन ई बुक खत्म हो जाएगी या हमारे जहाँ ऑनलाइन कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, इस तरह की स्केर्सिटी क्रिएट करोगे तो ये यूजर को बिल्कुल क्लियरली यही बताएगा कि यू आर अ स्कैमर। स्केर्सिटी जेन्युइन लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि हमारे पास फ्यू कोचेज हैं और अगर आपने अभी कॉल बुक ना की तो मे बी वो कोचेज अवेलेबल ना हो लेटर ऑन। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग द लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉर द मोस्ट पार्ट द एवरेज कंज्यूमर इज एबल टू टॉक themselves out of a buying decision by rationalizing in action. But when you tempt people with emotional trigger that align with rationality, borrowed authority, getting people to trust in what you are saying isn't always easy, which is why you can get them to believe you if you are saying align with someone they do trust. For the example, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, मैं आपको कहूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से खेलो, इस तरह से ज्यादा बेटर है, आप कहोगे हाँ इसको क्या पता। लेकिन अगर मैं कहूँ माइकल जॉर्डन जो कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, उसने कहा था कि इस तरह से नहीं इस तरह से खेलो, और मैं आपको इवन इसकी वीडियो भी दिखा दूं, तो फिर देयर इज अ चांस आप डेफिनेटली यकीन करोगे जो मैं कह रहा हूँ। या फिर आप फुटबॉल के प्लेयर हो तो मैं कह दूं कि रोनाल्डो ने ऐसे कहा था ऐसे खेलो, या मैं आपको उसके गोल की वीडियो दिखा दूं कि इस तरह से खेलने से आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, तो आप एब्सोल्युटली मेरी बात पे यकीन करोगे। ऑलवेज बोरोड अथॉरिटी इन योर कॉपी। रिलेटेबिलिटी। व्हेन यू डिस्क्राइब समवन सिचुएशन बेटर देन दे कैन, दे विल नेचुरली बिलीव यू हैव द सॉल्यूशन। फॉर द एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने जाके कहा कि मेरे कान के बैक साइड के ऊपर पेन है, और नेक्स्ट भी डॉक्टर ने आपको कहा कि हाँ यहाँ पर आपके पेन है, जब आप प्रेस करते हो तो इसमें जो है वो कोई चीज थोड़ी सी मूव होती है, आपको फील होती है। यस एग्जैक्टली, आपको कि हाँ हाँ यही प्रॉब्लम है, आपका बिलीफ डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको कि हाँ डेफिनेटली इसके पास सोल्यूशन है। मतलब आप जब रीडर की जो भी प्रॉब्लम है वो पहले ही डिस्क्राइब कर दो, देयर इज मोर चांस कि आप यूजर को कन्वर्ट कर सकोगे। जो भी आपका डिजायर आउटपुट है मतलब वो आपकी बात सुनेगा। अगर वो सोल्यूशन आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट या सर्विस है, then you'll rock. Statistics. It's difficult to argue with facts and figures. Statistics can also be combined with borrowed authority for massive persuasion. मतलब आप जब नंबर्स दिखाते हो ना, जैसे मैंने आपको ऊपर 2.5 मिलियन ऑनलाइन बिजनेसेस यूएसए में दिखाए और साथ में कॉपीराइटर्स का भी दिखाया, तो इस चीज़ ने आपके अंदर बिलीव पैदा किया, हाँ यार इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। दैट मीन नंबर ऑलवेज प्रोवाइड मोर क्लैरिफिकेशन। Testimonials. If there's someone else who can relate to the reader that has gotten the result the reader wants, it does wonder for building trust. People will trust you if other trust you as well. मतलब जब आप टेस्टिमोनियल ऐड करते हो, ये बात लिखी पड़ी है, चाहे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आपके प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू लग जाते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इस तरह जहां मर्जी आप चले जाओ, जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास टेस्टिमोनियल्स होंगे, प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लगे हुए होंगे, तो वो उसकी सेलिंग बहुत ज्यादा इजी होती है। प्रूवन स्केर्सिटी। इफ यू कैंट कम अप विद अ जेन्युइन रीजन व्हाई स्केर्सिटी एग्जिस्ट, देन यू हैव नो रीजन टू यूज इट। प्रो टिप, स्केर्सिटी कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड। मतलब कि जेन्युइन स्केर्सिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अगेन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये ऑलवेज क्रिएट की जा सकती है। एनालॉजीज, बिल्डिंग ऑफ प्रूवन कंसेप्ट्स एंड थिंग्स दैट पीपल ऑलरेडी नो इज अ ग्रेट वे टू कन्विंस देम ऑफ योर पॉइंट। एनालॉजी, जैसे मैंने आपको ऊपर एक कॉफी कप की एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि थिंक ऑफ दिस कोर्स इज एज अ $1000 कॉफी कप। एक एनालॉजी यूज की गई थी रिलेटेबिलिटी के लिए, और ऐसे ही है इस कोर्स को
really $1000 से भी ज्यादा का समझ। The only two human motivators are moving away from pain and moving toward pleasure. Moving away from pain, if someone has a certain standards of living, they'll usually fight tooth and nail in order to avoid regression. This is something we can use in our copywriting to evoke emotion. Example, 93% of top economic publication are convinced that the worst recession this generation has ever seen will come about in the next 1 to 3 years. If you're currently unable to live a couple $1,000 below your means, expect to be forced to downgrade houses, sell items that genuinely give you joy, and cancel plan of your next vacation. The only reason I say this is because millions of Americans are already being forced to give up these things, and evidence has shown things are going to get 5 to 10 times worse. मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में दो मोटिवेटर्स ऑलवेज काम करते हैं। मतलब हम ऑलवेज जो है ना, या तो हम किसी ना किसी पेन से जान छुड़ाना चाह रहे हैं या किसी ना किसी प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं। ये ऑलवेज है ह्यूमंस को मोटिवेट करता है। एंड फॉर अनदर एग्जांपल आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होता है जो जिम जाता है, उसकी जो प्लेजर वाली स्टेट होती है वो ये होती है कि वो एक अच्छी बॉडी चाहता है, और एक पर्सन जो जाता है वहाँ पे फैट लूज करने के लिए, और वो जो है वो उस फैट से छुटकारा पाना चाहता है, वो उसकी जो पेन दे रहा है उसको जो फैट, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। और एक और इस तरह से कि हम जो है वो अर्निंग करना चाह रहे हैं, हम जो है एक अच्छी ड्रीम स्टेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट, व्हाट्स इन इट फॉर मी। वी करंटली लिव इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, दैट्स व्हाई पीपल ब्रेन्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एट इग्नोरिंग थिंग्स। मतलब हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, उससे हम मिलियन टाइम ज़्यादा जो है इग्नोर करते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, इग्नोर करने की मशीन बन चुका है। आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो, कितनी सारी वीडियोस होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हो, मतलब जस्ट फ्यू ऑफ देम आप वॉच करते हो जो आपको लगती हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए अवेलेबल है। सो ऑलवेज मेक श्योर क्लियर करो कि आप जो है वो यूज़र को क्लियरली बता रहे हो कि इसमें यूज़र के लिए क्या है, उसके लिए इसमें क्या बेनिफिट है, किस तरह से उसकी लाइफ इंप्रूव कर रही है। सो इन ऑर्डर फॉर समवन टू केयर अबाउट आवर कॉपी, वी नीड टू मेक द बेनिफिट क्लियर to them very early on. In an email, you what's in it for me should be within the first 3 lines. Example, becoming a YouTuber can be confusing when first starting out. It's almost like more you learn, the more question you have. That's why in this email, I am going to answer every common question new YouTuber have. By the end of this email, you'll have everything you need to monetize your channel in the next couple months, even if you're currently at 0 subscribers. तो यहाँ पर हमने in the first 3 lines उसको clear बता दिया कि उसको ये email क्यों read करनी चाहिए. What's in this email for him? Fear of missing out. Nobody likes to miss the boat when it comes to opportunity. This is especially true in realms such as investment. For example, imagine if you would have bought a couple Bitcoin for 250 a pop and held on to it until now. Or if you would have purchased real estate right after the financial crisis of 2008, people know what it feels like to think, damn, I should have jumped on that when I could. So by showing them that this is an opportunity they could regret missing, they are far more likely to act right now instead of later. Every purchase is an impulse purchase. And for the example, यहाँ पर बिटकॉइन का ग्राफ है, मतलब कि जब बिटकॉइन न्यू स्टार्ट हुई थी, अगर तब काश बिटकॉइन बाय कर ली होती, इवन 4-5 ही बाय की होती, तो अब लाखों डॉलर फ्री में बन जाने थे. सो दैट्स व्हाई शोइंग पीपल फियर ऑफ मिसिंग आउट इज ऑलवेज वर्क. नेक्स्ट पार्ट फॉर द कॉपी कमेंटमेंट्स. ग्रेट राइटिंग एंड ग्रेट कॉपी राइटिंग आर सेपरेट थिंग्स, कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स. और मैं अब आपको एक ऐसी राइटिंग जिसको लिखने में एक ऑथर को सालों लग गए, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि वो कैसी लगती है. द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स एंड पीसेस ऑफ राइटिंग टू एवर बी क्रिएटेड बाय ऑल मैनकाइंड. दिस इज द बेस्ट पोएम विच आई एम गोइंग टू read. Ozymandias by Percy Bysshe Shelley, 1792 to 1822. I don't know the exact pronunciation of this name, but anyway, one of the greatest and most famous pieces of writing in the English language. I am going to read one of the best all mankind writing. So listen carefully. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those patience read which yet survive stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. ये जो अभी पोएम के हाफ पार्ट मैंने अभी रीड किया है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ ऑल मैनकाइंड है, और इसको लिखने में ईयर्स एक राइटर को लग गए हैं. सो इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया इसका मतलब क्या है. मुझे बिल्कुल कख भी समझ नहीं आया. और अगर आपको समझ आया ना, तो यू डेफिनेटली डिजर्व PhD एंड स्कॉलरशिप, वो भी कोई $5-10 की, क्योंकि ये पता नहीं सारा कुछ ऊपर से चला गया, कोई समझ नहीं लगी. और कॉपी राइटिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है. ग्रेट कॉपी राइटिंग शुड लिटरली साउंड लाइक इट वॉज रिटन बाय अ 10-year-old. रिमेंबर दिस लेसन, confusion kills conversion, so always focus on clarity over cleverness. Your main goal as a copywriter is to communicate ideas in the most efficient way possible
while using a little words as you can। कॉपी राइटिंग जो है ना इतनी ईजी वर्ड्स में होनी चाहिए ना कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड कर ले। बिल्कुल आप जो है अपने आइडियाज़, अपनी जो कोई भी आप सेल भी कर रहे हो प्रोडक्ट, अगले बंदे को इस तरह से समझाते हो जैसे बिल्कुल वो छोटा सा बच्चा है। इसलिए जैसे मैंने ऊपर कहा था, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोफिशिएंट इंग्लिश। व्हाट इज वैल्यू? हियर्स एन इक्वेशन। One of the main goal of copywriting is to communicate value, but what does this really means? Nine-figure entrepreneur and business influencer Alex Hormozy came up with this useful equation: dream outcome plus perceived likelihood of achievement divided by time delay multiply effort and sacrifice is equal to value। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमाइज वैल्यू यूजिंग वैल्यू इक्वेशन। मैक्सिमम ड्रीम आउटकम, सॉल्व प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, मतलब कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो वाकई सॉल्व करने के काबिल भी हो। इस तरह से नहीं कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को रीच करके कहो कि मैं जो है वो आपकी पोस्ट है जो है वो सोशल मीडिया के जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर कर दिया करूंगा। ये कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करो जो वाकई में वर्थ सॉल्विंग हो, मतलब कि आप उसकी किस तरह से सेल्स इंक्रीज कर सकते हो आजकल की न्यू AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, समथिंग लाइक दैट। मैक्सिमाइज परसीव लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, टेस्टिमोनियल्स एंड प्रूवन केस स्टडीज, मतलब क्लाइंट को ऑलवेज टेस्टिमोनियल एंड प्रूवन केस स्टडीज शो करवाओ। मतलब कि जब दूसरे जब आपके ऊपर ट्रस्ट करे होंगे तो वो भी डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, चांसेस इंक्रीज होंगे उसके भी ट्रस्ट करने के आप पर। मतलब कि जब आप उसको टेस्टिमोनियल शो करवाओगे कि इस क्लाइंट का मैंने ये काम करके दिया और ये उसका 5 स्टार रिव्यू है, और उसके अलावा प्रूवन केस स्टडीज ये जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई की थी और ये उसका आउटकम आया था। उसके बाद मिनिमाइज टाइम टू सक्सेस, हाउ वी कैन मेक दिस फास्टर, हाउ वी कैन शो प्रोग्रेस, मतलब कि उसको शो करवाओ कि किस तरह से आप इस काम को जल्द से जल्द कर सकते हो, क्योंकि हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है टाइम। और बिजनेस को तो हर काम अभी के अभी चाहिए होता है, फास्टर। एंड हाउ वी कैन शो प्रोग्रेस, टाइम बाय टाइम माइलस्टोन की फॉर्म में किस तरह से उसको थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस शो करवाते रहेंगे। मिनिमाइज एफर्ट एंड सेक्रीफाइस, हाउ कैन वी मेक दिस इजियर मोर सीमलेस कन्वीनियंट, कि हम किस तरह से इसको ईजी बना सकते हैं, सीमलेस कन्वीनियंट बना सकते हैं। मतलब कि उस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़े, उसकी जो इनपुट हो वो कम से कम हो, और उसको मतलब ज़्यादा उसको कोई प्रॉब्लम्स ना उसके लिए एक्स्ट्रा क्रिएट हो। नंबर 3, हाउ अ सिंपल लैडर मेक्स मिलियंस। फॉर द मोस्ट पार्ट पीपल विल ओनली डू बिजनेस विद दोज दैट दे नो लाइक एंड ट्रस्ट, मतलब कि लोग उसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिसको पसंद करते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे एक स्ट्रेंजर के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते। ये डायग्राम अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर रही है कि किस तरह से हम जो है वो लाइकेबल बन सकते हैं, किस तरह से हम ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे अटेंशन ग्रैब करने के लिए, फिर उसके बाद रिसोर्स ईमेल, मतलब हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, फिर हम छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ, लो टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, फिर मिड टिकट्स के साथ मतलब थोड़े से हैवी लेवल के क्लाइंट, फिर उसके बाद हमें जो है वो बड़े लेवल के क्लाइंट मिलने शुरू होंगे। टू गेट पीपल टू द स्टेट ऑफ ट्रस्टिंग यू इनफ टू मेक साइजेबल परचेज, इट्स बेस्ट टू बिल्ड द रिलेशनशिप लो रिस्क ऑफर फर्स्ट। उस स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए जहां पर हमसे लोग इजीली जो है वो एक अच्छी परचेज कर लें, हम पर ट्रस्ट करें, उसके लिए सबसे पहले रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना होगा कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, उनको लो रिस्क ऑफर देकर, मतलब कि जिनमें उनको कोई ना कुछ खास नुकसान ना लग रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैल्यू मिल रही हो, इंस्टेड ऑफ जो वो हमें पे करने वाले हैं। कि हम उनको इस तरह से कह सकते हैं कि हम जो वो स्टार्ट में कुछ फ्री प्रोवाइड करेंगे, या स्टार्ट में हमें आप कुछ भी नहीं पे करिएगा, जब आपको वैल्यू मिल जाए, जब आपको बेनिफिट फील हो, आपको काम पसंद आए, तो तब आप पे कर सकते हैं। इस तरह से हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ब्रांड वॉइस, अ ह्यूज मिस्टेक दैट मैनी कॉपीराइटर कमिट इज स्पीकिंग इन देयर वॉइस इंस्टेड ऑफ द क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेंड अ मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग ईमेल, यू शुड यूज स्टोरीज एंड लर्निंग लेसन फ्रॉम योर क्लाइंट्स रेदर देन फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। यानी कि हमें जो है वो अपनी खुद की स्टोरीज नहीं बतानी चाहिए, मतलब मैं वहां पे गया था, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था, इस तरह का कुछ नहीं। हमें जो है वो जो कुछ भी हम उसको सेंड कर रहे हैं ना, वो क्लाइंट से रिलेटेड हो, वो अपने बारे में सुनना चाहते हैं, उनको हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी बिजनेस को, किसी भी कस्टमर को जो है वो आप में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको इंटरेस्ट होता है कि किस तरह से उसकी लाइफ बेटर बन रही है, उस ईमेल को रीड करने से, उस प्रोडक्ट को यूज करने से, उस सर्विस को यूज करने से। सो उसके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करने के लिए जब हम उसको मोटिवेटिंग या इंस्पायरिंग ईमेल भेज रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी हम यूज करें ना, कोई स्टोरी या लर्निंग लेसन, वो क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड, कस्टमर का जो वर्ल्ड है, कस्टमर की जो नीश है, उससे रिलेटेड होना चाहिए वो। फर्दरमोर द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन शुड रिफ्लेक्ट दैट ऑफ योर क्लाइंट्स एज वेल। इफ द क्लाइंट इज लेस फॉर्मल एंड मोर पर्सनल, द कॉपी शुड रिफ्लेक्ट दैट। मतलब कि जिस तरह की क्लाइंट की टोन है ना, उसी तरह की आपकी टोन होनी चाहिए। मतलब उसके लेवल के ऊपर आके जो चीज उसको पसंद है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन उसको पसंद है, आप उसमें उससे कम्युनिकेट करो। 5, अंडरस्टैंडिंग योर avatar target audience. Your target audience is a general subset of people who may identify with your offer or content. An avatar is bringing your ideal consumer to fruition so you can get crystal clear on how to single them out. For example, target audience, male age 18 to 24, lives in the United States, play sports. Avatar, Kosin is an 18-year-old guy who listened to Andrew Tate and other inspiration online figures. He's highly motivated to make a better life for himself and start his journey to self-improvement, but he struggles with the basics like waking up on time and eating right. When on the shooting range, a common saying is aim small, miss small. अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है वो एक एवातार क्रिएट करते हैं, एक इमेजिनेबल एवातार क्रिएट करते हैं कि एक 18 to 24 ईयर ओल्ड
एक यंग मैन है जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहता है। क्वेश्चन उसका नेम है एंड्रू टेट को वो सुनता है और भी इंस्पायरेशनल फिगर्स को, और वो हाईली मोटिवेटेड है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन वो जो है ना बहुत बेसिक चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, मतलब अच्छा खाना खाने में और टाइम के ऊपर उठने पे। जब हम ये जनरल से अवतार इमेजिन कर लेते हैं तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा ना उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना वो उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा फिर अफेक्टिव हो जाती है। लाइक जैसे इस डायग्राम में है कि एक अवतार है यहाँ पर और एक टारगेट ऑडियंस है। अगर हम इस अवतार को टारगेट करेंगे ना तो 50% चांस है कि हम इसके साइडों के ऊपर निशाना लगाएं और 50% चांस है कि अवतार के ऊपर निशाना लगे। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस ब्रॉड होगी, हमारा जो निशाने लगाने वाली जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 50% चांस है कि हमारा इसके ऊपर निशाना लगेगा टारगेट ऑडियंस के ऊपर, और 50% चांस है मिस ही हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर इज पार्ट 5 टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग की जो फर्स्ट टाइप है वो है ईमेल कॉपी। Email copywriting consists of creating marketing emails that can be sent out to a company's list of email addresses or can be automatically sent to each new subscriber. Copywriting की टाइप ईमेल कॉपीराइटिंग में हम जो है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक, क्लाइंट्स तक, डिफरेंट बिजनेसेस को रीच करते हैं थ्रू ईमेल। सेकंड टाइप इज एड कॉपी। एड कॉपी इज एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग कोल्ड ट्रैफिक। दिस कैन बी थिंग्स लाइक यूट्यूब एड, इंस्टाग्राम एड और फेसबुक एड, टिकटॉक एड, पिंटरेस्ट एड, ट्विटर एड, टू एनीथिंग रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, जिसमें जो नेक्स्ट कस्टमर होता है प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमें जानता भी नहीं होता लेकिन पोटेंशियल वो हमारा कस्टमर बन सकता है। सेल्स पेज कॉपी। Whenever someone clicks on an ad or the link in your email, they are lead to a page that communicates the value of product. The content on this page, the content on this page play a huge role in its success. कस्टमर से जो है वो प्रोडक्ट बाय करवाने में, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। उससे पहले जो उसने वो ऐड देखा, इससे पहले जो हमने ईमेल्स वगैरह सेंड की, वो सारे के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पर आके जो है वो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो दिस वन प्लेज अ वेरी बिग रोल। व्हाट यू शुड फोकस ऑन टू लर्न कॉपीराइटिंग। राइटिंग शॉर्ट ईमेल्स 200 to 300 वर्ड्स आइडली। आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो बाय राइटिंग शॉर्ट ईमेल्स आइडली 2 to 300 वर्ड्स की, जितनी हो सके मैक्सिमम जो है वो आप emails राइट करो। राइटिंग स्टोरी ईमेल्स। स्टोरी ईमेल्स आर हाईली इफेक्टिव yet more difficult to pull off than the other copywriting structures. Story email is the best way to communicate with customers, build relationship, build trust. Just like मैंने आपको एग्जांपल के लिए ऊपर दिखाई थी उसकी एंड्रू टेट की न्यूज़लेटर, वो एक स्टोरी टाइप। राइटिंग सेल्स पेजेस। सेल्स पेजेस consist of many moving parts from headlines to VSL to body copy. That's why they are more advanced, but you can charge more for them upfront. सेल्स पेजेस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, लाइक हेडलाइन, बॉडी पार्ट, और ये थोड़े से एडवांस भी होते हैं, इसलिए आप इनके लिए ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट मोर लर्न करेंगे। Writing other types of copy. There are hundreds of different types of copywriting out there. At the end of the day, when you master the foundational skills, you will be able to write any sort of copy you get assigned. सबसे पहले आपको बस फाउंडेशनल स्किल्स जो है ना उनको मास्टर करना है, उसके बाद जो अपने आप आपका जो है ना रोड मैप बनता जाएगा, आपको जो है डिफरेंट रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जस्ट start is the difficult part. How to start writing copy today? Analyze. First of all, analyze. To figure out what copy looks like, how it flows, and common techniques, you should continually analyze and break down every ad, email and sales page you come across. आपको जो अपना point of view है ना, अब आपको वो completely change करने होगा चीज़ों को देखने का, एडवर्टाइजमेंट को देखने का। जब भी आप ऑनलाइन जाओ, कहीं पर भी ऐड देखो, कहीं पर भी किसी भी टाइप का वो ऐड हो, उसको जो आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ना आप डिफरेंट होना चाहिए। आप उसको एनालाइज करो कि क्या कुछ इसमें उन्होंने यूज़ किया हुआ है, किस तरह से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, ये सारे का सारा कुछ जो है ना आप एनालाइज करो। एनालाइजिंग कॉपीराइटिंग रेलिवेंट टू योर नीश, यू आर गोइंग टू फाइंड डिफरेंट एंगल्स, strategies and fascination that you can use in your own copy in the future. जब आप एनालाइज करोगे ना डिफरेंट कॉपी अपनी नीश में, जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड, तो आपको डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का जो है ना आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट जो है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। तो ये आपको अपनी खुद की कॉपी लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑप्टिमाइज ऑफर पैकेजेस, ऑर्ली रेट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग टू कैटर टू डिफरेंट क्लाइंट नीड्स एंड बजट। आप डिफरेंट ऑर्ली रेट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है ना क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग और उसके बजट के अकॉर्डिंग जो है उसको कस्टमाइज करो। What is a swipe file? How to synthesize your copy, other copy, other copy, other copy. ये डायग्राम आपको क्लेरिफिकेशन दे रही है किस तरह से आप जो है ना डिफरेंट कॉपीज को एनालाइज करोगे, डिफरेंट एड्स को एनालाइज करोगे, डिफरेंट जो मार्केटिंग की दूसरों ने ईमेल्स कॉपीराइटिंग लिखी हुई है, या डिफरेंट जो भी आपकी प्रोडक्ट नीश है उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉपीज को आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी क्रिएट करोगे। एंड फॉर द एग्जांपल यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस हैं डिफरेंट, सबका टॉपिक एक है, 7 dirty habits that turn man weak, 8 habits keeping you a weak man, 5 habits keeping man weak,
6 डिस्कसिंग हैबिट कीपिंग मैन वीक, 6 बैड हैबिट्स कीपिंग मैन वीक। ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं इनका टॉपिक एक है, लेकिन सबके सबको बहुत ज़्यादा बड़े ह्यूज वॉल्यूम में व्यूज़ मिले हैं, क्योंकि हर एक ने ना, टॉपिक चाहे एक है लेकिन हर एक ने अपनी ओन पर्सनैलिटी, अपने ओन एक्सपीरियंस, अपने जो उसका खुद का ब्रांड है, जो उसकी खुद की सुपर पावर है। जैसे कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी जो अपना वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका खुद की जो वॉइस है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी, उसका जो पर्सनल ब्रांड है, उसको उसने टच दे के उसको एक्सप्लेन किया है, तो हर बार वो यूनिक बन गया है। सो हर बार जो है ना, वो टॉपिक एक ही रहा है, लेकिन वो हर एक ने अपने अपने टच के साथ उसको यूनिक बनाया है। ग्रेट कॉपीराइटर्स आर मास्टर एट इथिकली स्टीलिंग द बेस्ट कॉपी that they already know works. For example, all the topics above are the exact same, but the pacing, style, script and content are totally different. मतलब कि टॉपिक सेम है, लेकिन उसकी पेसिंग, स्टाइल, स्क्रिप्ट एंड कंटेंट, उसको कम्युनिकेट करने का वे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हर एक का। दैट्स वाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्वाई फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीसेस ऑफ कॉपी दैट यू कैन पुल फ्रॉम। रिमेंबर, कॉपी इजंट रिटन, इट्स assembled, ऑलवेज इट इज assembled। मतलब कि इसीलिए स्वाइप फाइल जो बनाना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉपी जो है हम कभी भी राइट नहीं करते, डिफरेंट पीसेस को हम बस जोड़ते हैं। बिल्डिंग योर स्वाइप फाइल पार्ट 6, राइटिंग अ ग्रेट पीस ऑफ ईमेल कॉपी। फुल गाइड। व्हाट शुड योर ईमेल लुक लाइक? सब्जेक्ट लाइन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अटेंशन ग्रैब करनी है, उनके बिलीफ्स को ना हमने चैलेंज करना है, कुछ भी हमने ऐसा राइट करना है जो उनकी अटेंशन को ग्रैब करे। उसके बाद आपकी ईमेल में इंटरेस्ट का फैक्टर भी होना चाहिए कि हम जो यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें डिजायर के ऊपर भी काम करना है, हमारी जो ईमेल है वो एक डिजायर क्रिएट कर रही हो यूजर में। उसके बाद नेक्स्ट जो कि हमारा मेन गोल है एक्शन, CTA, वो हमारी ईमेल में मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए। फॉलोइंग सिंपल स्ट्रक्चर्स, PS, HSO एंड CGN। हम एक एक करके तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ईमेल्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम, एजिटेट, सोल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉब्लम, रिलेट टू दैम विद द प्रॉब्लम दैट दे आर करंटली फेसिंग दैट दे मे और मे नॉट नो दे हैव। मतलब कि उनके साथ ना रिलेट करो, उनको वो प्रॉब्लम बता के, जैसे वो मैंने आपको डॉक्टर वाली एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर को आप थोड़ी सी बात बताते हो, अगली नेक्स्ट बात वो आपको बताता है। उसी तरह से आप उसको प्रॉब्लम बता के ना उसके साथ जो है ना एक रिलेटेबिलिटी क्रिएट करो। एग्जाम्पल, हैव यू एवर लॉस्ट मनी ऑन अ ट्रेड एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द वीक रिवेंज ट्रेडिंग? दिस इज व्हेन यू इमोशनली ट्रेड एग्रेसिवली एंड यूजुअली एंड्स अप टर्निंग अ रेड डे इनटू अ रेड वीक रियल क्विक। यहाँ पर हमने जो है वो एक जनरल सी जो ट्रेडिंग वालों की प्रॉब्लम होती है ना, उसको हमने जो है वो हाईलाइट किया है। उसके बाद एजिटेट, दिस इज where you twist the knife and paint a picture of how bad the situation will get if not remedied. Example, this is the number one reason that new traders blow up their account and quit day trading for good. I've seen dozens of night traders make their 100K trading fund disappear इन एज लिटिल एज अ कपल मंथ। ये एक बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। और ये न्यू ट्रेडर जो है ना, नाइव ट्रेडर, मतलब इमेजिन करो आपने 100K की इन्वेस्टमेंट के साथ जाओ अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की, और कुछ ही मंथ्स में जाना आपके सारी की सारी उड़ गई इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी। सोल्यूशन, दिस इज द एडवाइस और लेसन दैट विल रेमेडी द प्रॉब्लम दैट्स बीन एजिटेट। रिमेंबर टू यूज द प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप। प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप जो मैंने आपको बताया था कि मतलब कि एक प्रॉब्लम हमने बताई, उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन वहां पे हम एक और प्रॉब्लम ले आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम लिंक के थ्रू। डू यू अंडरस्टैंड? Example, that's why creating a trading plan and learning how to stick to it is by far the most difficult yet rewarding key to making as much money as you want. If you want to know how to come up with a trading plan tailored to you that you can actually stick to, click here to watch the free training I just uploaded. यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की और उसका सोल्यूशन हम उसको लिंक के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं, हम उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, उसको पहले फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करके, उसके बाद जो है वो हम उसको अगेन फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करें, जो नेक्स्ट हम उसको अपने और ज्यादा करीब लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड टाइप, CGN, चैलेंज, जस्टिफाई, नीड। Challenge. A great way to get someone's attention is for you to say something that's contrary to popular belief. Example, Kim Kardashian is the best entrepreneur of our generation. For those of you who don't know, Kim Kardashian is a female and very rich businessman. Justify हम उसको करेंगे. She's not the smartest, hardworking, or even the best looking, but she knows how to get attention and turn them into followers. This is why she's one of the richest people on the planet. अब हमने जो स्टेटमेंट दी थी उसको जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद नीड, दिस इज वेयर यू ट्रांजिशन into the learning lesson and use the solution problem loop into the CTA. Example, and by studying the strategies used by Kim, I've been able to distill her ability to monetize attention into a simple 3-part formula. I call it the Kim K funnel. If you want to access, just reply to this email and I'll send it over. Again, कितना ये सारे का सारे देखो प्रोसेस स्मूथ कितना है। एंड द थर्ड वन इज हुक, स्टोरी, ऑफर।
HSO. Hook grabs people's attention by giving them a piece of your story that sounds interesting or difficult to believe. Example, why getting fired 4 times was the best thing that ever happened to me. Story, this is where you relive the story and give people insight into the feeling and moral dilemmas of the main character. Example, in 2008, I lost everything 4 times. No matter how many times I picked myself up and dusted myself off, misfortune was waiting to knock me back down again. Now you offer them the learning lesson of your advice and transition to another problem solution loop. मतलब problem solution loop फिर again यहाँ पे आ रहा है. Example, but after getting laid off for the 4th time in 3 months, I knew I'd had enough. So I fired up Google, searched for ways to make money online, and 3 years later, I just made my first million online. Don't forget that it's always darkest before dawn. That's nice. Join the newsletter here. You got this, man. This was so smooth. So smooth. ईमेल लिखी ही कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बंदा ना ईमेल पढ़ते पढ़ते उसमें खो ही जाए. This is the key. This is skill that everyone can learn. Writing your first email step by step. Pick a product or niche. Remember, something you are knowledgeable on will the best. Always है ना, नंबर 1 आप पिक का प्रोडक्ट या कोई नीश कुछ भी आप ऐसा सिलेक्ट करोगे जिसके रिलेटेड जो है ना आपको नॉलेज हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको उसके रिलेटेड जरूर नॉलेज हो. सेकंड, पुल इंस्पिरेशन फ्रॉम योर स्वाइप फाइल. जो मैंने आपको ऊपर स्वाइप फाइल क्रिएट करने का बताया, उससे जो है वो आप इंस्पिरेशन पुल करोगे. टेक सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लाइंस एंड टैक्टफुली put them in your own copy. Fill in the blanks with the templates provided. जो मैंने आपको ऊपर email वाली template provide करी थी उसको जो है वो fill करो using the swipe file and also some of your own research जो आपने online research किया. Fill out the template that's provided for you inside the starter kit. और ये starter kit क्या है? ये इसके अंदर सारे रिसोर्सेज जो कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो टेम्पलेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन दैट स्टार्टर किट इज़ अवेलेबल. और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और उसके अलावा और भी बहुत कुछ मेरे पास आपके लिए है. एट द एंड ऑफ द वीडियोस बहुत सारे surprises. Refine your copy. Pass in your copy for review. Edit it the next day and run it through ChatGPT. और यहाँ पर ये डायग्राम जो है, जो कुछ मैंने अभी आपको बताया उस सारे कुछ आप विजुअली एक्सप्लेन करिए. मतलब आप पहले जो है पिक करोगे एक नीश प्लस टेम्पलेट जो प्रोवाइड की, उसके बाद सिंथेसाइज करोगे, दूसरों की कॉपीज देके रिसर्च करके अपनी कॉपी बनाओगे, उसको जो है वो AI को दोगे. AI के बाद जो है आप रिव्यू के लिए सबमिट करोगे. कहाँ पे आप उसको सबमिट करोगे? एक ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पर जो है ना मास्टर से मास्टर एक कम्युनिटी या पूरी पावरफुल प्लेयर्स की कॉपी राइटिंग से रिलेटेड. ये सारा कुछ मैं आहिस्ता से रिवील कर रहा हूँ. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा. पूरी कम्युनिटी है प्लेयर्स की, बहुत बड़े बड़े, और वो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को ग्रो करने में. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. I have covered everything for you. How to practice and get better. Write more emails. This is the only way to get better at anything. Practice, 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 practice. Submit your email for review. Other more experienced copywriter will be able to see your blind spot and give you point. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी कम्युनिटी है जिसके डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पर जो है वो अपनी आप रिव्यू कॉपी सेंड कर सकते हो और वो सारे के सारे रिव्यू करके आपको जो है उसके ऊपर रिव्यू फीडबैक देंगे. आप उसको इंप्रूव कर सकते हो. रिव्यू योर डे ओल्ड कॉपी. व्हेन यू लीव योर कॉपी फॉर अ डे यू कैन रिव्यू इट विद द मोर ऑब्जेक्टिव माइंड. दिस विल अलाउ यू टू इजिली कैच मिस्टेक यू डिडंट नोटिस बिफोर. जब आप एक दिन के बाद देखोगे ना अपनी कॉपी को, तो उसमें वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो है जो आप पहले हाईलाइट नहीं कर पाए, उनको जो है वो आप बाद में जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकोगे. कंज्यूम कॉपी इंटेंशनली. वॉच एवरी एड, एनालाइज एवरी प्रोडक्ट, रिकॉग्नाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, आप एड्स को, एडवर्टाइजमेंट को, मार्केटिंग को देखने का, आप कहीं रेस्टोरेंट के ऊपर जाओ, आप टीवी के ऊपर कहीं पर भी ऑनलाइन जब भी देख रहे हो कुछ भी, जब भी आपके सामने ऐड आए ना, उसको आप देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही अब चेंज होना चाहिए. रिव्यू अदर्स पीपल कॉपी. यू डोंट अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट अनलेस यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू समवन हु डजंट नो इट. रिव्यूइंग अदर कॉपी विल अलाउ यू टू सॉलिडिफाई योर नॉलेज. मतलब जब आप दूसरों की कॉपीज देखोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना वो ब्रॉड होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो लर्न करोगे. तो हियर इज सेल्स पेज एनाटॉमी. अनलाइक ईमेल कॉपी, सेल्स पेज कॉपी इज स्पेसिफिकली डिजाइन विद सेलिंग इन माइंड. हियर इज व्हाट योर बेसिक स्ट्रक्चर में लुक लाइक फॉर सेल्स पेज. ये डायग्राम जो है ना आपको पूरी क्लेरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से हमारा जो है सेल्स पेज दिखेगा. हेडलाइन होगी सबसे पहले जो कि यूजर की अटेंशन को ग्रैब करेगी. उसके बाद जो है यूजुअली वीडियो होगी, वीडियो में जो हम पूरी की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करें जो भी हमारी प्रोडक्ट है, सर्विस है या कोर्स है. उसके बाद जो है वो बटन होगा गेट एक्सेस का, वो भी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या कोर्स है उसकी तरफ जो है लिंक, उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ होगा. उसके बाद व्हाट्स इनसाइड, हाउ इट वर्क्स, टेस्टिमोनियल्स, गारंटीज, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे फॉर द मोर डिटेल. और सबसे एंड में जो है वो हम FAQs ऐड करते हैं. और वो FAQs इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यूजली जो है ना हेडलाइन और वीडियो देखने के बाद लोग जो है डायरेक्ट जो है वो नीचे स्क्रॉल कर जाते हैं ये देखने के
लिए मे बी नीचे प्राइस मेंशन हो समथिंग लाइक दैट। सो वहाँ पर हमने FAQs दिए होते हैं ताकि जो है वो यूजर को जो है ना मोर क्लियरिफिकेशन मिल सके जो भी उसके क्वेश्चन हो। सो नेक्स्ट हियर आर द एग्जांपल्स। ये एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट की एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर वेबसाइट जो है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर तो नहीं फॉलो करते जिस तरह का इस डायग्राम में मेंशन है, लेकिन एक क्रिस्पी सी लाइन लैंडिंग पेज के ऊपर जरूर होती है। जैसे यहाँ पर है देयर आर नाउ 13 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब 13 मंथ्स, एक साल में 13 महीने कैसे अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है रीडर्स के बिलीव्स को। मोशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 137% विद ऑटोमेशन एंड AI दैट इंटेलिजेंटली प्लान योर डे, स्केड्यूलिंग मीटिंग्स एंड बिल्ड द परफेक्ट टू डू लिस्ट, ट्राई फॉर फ्री। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाना है, इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हाईलाइट किए हुए हैं। एंडलेस टू डू लिस्ट, कंप्लीटिंग ए मोशन बिल्ड्स द स्केड्यूल फॉर यू, मोशन ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज वीक, मोशन रीच स्केड्यूल अनडन वर्क, मोशन ट्रैक्स ऑल योर प्रायोरिटीज, मोशन लिमिट्स मीटिंग। मतलब देखो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम जो है वो हाईलाइट करते हैं बेनिफिट नाट के फीचर। उन्होंने भी अगर यहाँ पे फीचर मेंशन किए होते तो किसको समझ आने थे, इसलिए सारे के सारे उन्होंने बेनिफिट्स हाईलाइट किए हैं ना कि फीचर्स। सो नेक्स्ट हियर इज एन अनदर एग्जांपल। ये बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है जो मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया है। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक्सेस माई 0 to 1.8 मिलियन ड्रॉप शिपिंग केस स्टडी फॉर जस्ट $1। दिस इज़ रियली अटेंशन ग्रैबिंग। उसके बाद कंप्लीट डिटेल वीडियोस प्रोडक्ट की, उसके बाद जो है वो बटन, और उसके बाद नेक्स्ट मोर डिटेल्स। तो इस तरह से आपके लैंडिंग पेजेस स्पेशली सेल्स से रिलेटेड जो है ना वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग AI टू डू योर डर्टी वर्क। ये डायग्राम जो है ना U प्लस AI इज इक्वल टू डॉलर, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है। AI वोंट रिप्लेस यू बट अ कॉपीराइटर यूजिंग AI विल, एंड copywriter using AI definitely 100% 1 billion% will replace you. What AI can do for you? AI हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है? AI हमारे लिए जो है वो avatar रिसर्च कर सकती है। Tell me what it feels like for a young man to go to the gym but not be able to gain muscles. Describe what goes through his head in great details. ये जो है ना AI हमारे लिए कर सकती है। जनरल इंप्रूवमेंट्स कर सकती है हमारी ईमेल में। कोई भी किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन, ग्रामर मिस्टेक, ये सारा कुछ जो है ना AI जो है वो बेटर कर सकती है। उसके बाद जस्टिफिकेशन। टेल मी व्हाई माइंडसेट इज द बिगेस्ट फैक्टर इन बीइंग अ सक्सेसफुल डे ट्रेडर। और नेक्स्ट, व्हाट AI can't do for you. Create emails that you can copy, paste and send. No, 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 please, no, no, please don't, never ever इस तरह से कभी भी मत करना प्लीज प्लीज। 5.798.78 बिलियन माइल्स दूर से ना AI की जो ईमेल है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह की ईमेल जो है ना डिटेक्ट हो जाती है, और जैसे ये डिटेक्ट होगी ना डायरेक्ट आप जो है ना ड्राफ्ट में स्पैम फोल्डर में डिलीट, खत्म, टाटा बाय बाय, सारी कहानी खत्म होगी। हमने ईमेल्स में रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, कनेक्शन बिल्ड करना होता है बिटवीन कस्टमर्स और हमारे दरमियान में, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जब AI से जनरेटेड होगी ना वो तो खत्म, खाते ही खत्म हो जाएगा। सो प्लीज डोंट एवर डू दिस। एड ह्यूमर टच योर ईमेल्स। समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डजंट। कंसिस्टेंटली कम अप विद गुड ह्यूमर। AI जो है ना कभी कभार बहुत अच्छा ह्यूमर प्रोवाइड करता है, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि कंसिस्टेंटली जो है ना AI जो है गुड ह्यूमर के साथ नहीं आता। कभी कभी ह्यूमर काम भी करता है, कभी कभी ह्यूमर मार भी पड़वा देता है। So before we dive into how to get clients and make money ASAP, recap and action steps. In this section you learned what copywriting is and why it's so valuable. उसके बाद how to write your first piece of copy, email copywriting structure, psychology principle that sell, how to utilize AI to do the heavy lifting for you. ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने इस स्लाइड में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये सारा कुछ आपने लर्न किया है। Immediate action steps for after you finish watching the full course. Download the template provided, fill them out to start writing your first piece of copy and follow the checklist provided previously. मतलब जो ऊपर ईमेल वाले टेम्पलेट प्रोवाइड की थी उसको यूटिलाइज करते हुए जो है ना पूरी की पूरी उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना, और उसके बाद जो है जितनी हो सके, जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। आपको वो टेम्पलेट्स और सबका सब कुछ जो है ना उसकी पूरी स्टार्टर किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Okay, so here we are with another template, paid in 30 days, how to get copywriting clients. In this class I'll be handling you the complete action plan to getting paid as a copywriter in 30 days or less. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्लाइंट सेंड कर सकते हैं, the ultimate best in the world guide. You'll walk away from this section knowing prospecting secrets, learn the best places to find clients and the exact criteria to use to figure out exactly who you should be outreaching to. उसके बाद ultimate outreach method menu, a range of effective outreach method that consists of the core 4 best strategies that are going to guarantee you बुक सेल्स कार्ड। उसके बाद आप सीखोगे अथॉरिटी ऑप्टिमाइजर इंस्टाग्राम, किस तरह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी जो है एक बिल्ड करोगे, अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करोगे जो कि एज आपके लिए फनल काम करेगी वो प्रोफाइल, कि किस तरह से खुद आपको क्लाइंट जो है ना आके कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद सेल्स कॉल सुपर स्ट्रेटजीज के किस तरह से आप सेल्स कॉल्स के ऊपर जाकर क्लाइंट्स को क्लोज करोगे। पेड इन 30 डेज रोड मैप कंप्लीट, 90 डेज टू 10K मंथ ब्लूप्रिंट, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के किस तरह से आप 90 डेज में 10K की अर्निंग को अचीव करोगे। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेक्शन यू आर गोइंग टू लर्न। लेट्स स्टार्ट।
But do these methods actually work? Yes, man, these methods actually work. So for your satisfaction, here are the examples. 3.2k with Tylops. For those of you who don't know who is this person, he is the best entrepreneur in the online world. इसके बारे में आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं और ये पर्सन डायरेक्ट उसके साथ काम कर रहा है. आई हैव बीन वन ऑफ Tylops direct response copywriter working with him and his sales marketing team for 3 weeks now. I have already made 2.2k from him so far, will be at 3.2k per month going forward. This brings me to total earning of 5k plus with copywriting so far. That's nice. Another example, 2k per month for 12 months and a Mac Pro and other goodies. Mac Pro just secured a 2k a month deal on a 12-month contract plus bonuses, commission can be negotiated. They gave me a Mac Pro and other stuff. Client से Mac Pro मिलना with closed eyes, imagine this. That's nice. Client आपको MacBook Pro दे. Another story, 4.3k for the month. और अपना बैलेंस और दूसरे स्क्रीनशॉट जो है उसने यहाँ पर दिखा रहा है. उसके बाद another one, this one, this one, this one, this one, and this one. That's nice. This is mind blowing. So that being said, this method actually work. So what is outreach? Outreach होती क्या है? Outreach is the best way to get clients as a freelancer. Avoid things like job boards and freelancing websites. These way of trying to make money as a freelancer are useless for the most part. Not totally. काम करते हैं ये नहीं कि इधर से पैसा नहीं बनता, इधर से भी बनता है, लेकिन इंस्टेड यू शुड आउटरीच टू बिजनेस टू गेट क्लाइंट्स. आप जो डायरेक्ट बिजनेसेस को रीच करो. This is the more effective way. With outreach, we find clients online and decide if they are worth outreaching or not. This is known as prospecting. The goal of outreach is to get on a sales call. A sales call is where you get clear on their goals and intentions and ultimately sell your copywriting service to them. This is the whole process of outreaching. हम जो है वो potential customer जो clients होते हैं उनको outreach में हम जो खुद जो potential customer client होते हैं हम खुद उनको जाके approach करते हैं, उनको जो है वो उनकी जो भी problem है उसका solution provide करते हैं, free में पहले start में value provide करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो eventually उनको अपनी copywriting की service sell करते हैं. So this is called आउटरीच. वट आउटरीच लुक्स लाइक, ये डायग्राम को प्रॉपर क्लियरिफिकेशन देगी. ये आप हो या आपके वेज ऑफ रीचिंग टू क्लाइंट्स हैं, मतलब ईमेल से, फोन कॉल से, डायरेक्ट मैसेज से, एसएमएस से, वॉइस मेल से, और ये जो है वो पर्सन है जिनको आप सबको रीच कर रहे हो. और इनमें से ये जो इतनी बड़ी ह्यूज वॉल्यूम में बंदे हैं ना, इनमें से कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा. और ये वाले जो हैं इतने से जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और इनमें से भी जस्ट 1 to 2% जो है ना आपकी सर्विस बाय करेंगे. जस्ट 1 to 2%. एंड बिलीव मी, हमें सिर्फ 3 से 4 क्लाइंट्स चाहिए एक अच्छी हेल्दी अमाउंट बनाने के लिए. हमें कोई 100 की तादाद में कोई टीम पूरी नहीं चाहिए. Who are we going to outreach to? Not nearly enough copywriters actually spend time prospecting properly and end up wasting time outreaching to the wrong people. Here's how you can avoid that. Approved niches. मैं आपको next जो है कुछ approved niches बताऊंगा, तो try your best to work on those niches. Most of the time ना आप उसी के साथ काम करना जिसके पास product हो, कुछ ना कुछ sell करने के लिए हो, जिसकी वजह से उनके भी पैसे बने, जिसके साथ वो भी पैसे बना सकें. And our desired size, मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड को ना, एप्पल को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज को रीच करोगे ना, तो देयर इज लेस चांस कि आपको जो है वो काम मिले, क्योंकि वो जो है इन हाउस जो है उनको हर चीज़ चाहिए होती है. एंड सेकंड नंबर के ऊपर किसी आप 100 फॉलोअर वाले को जो है रीच करोगे, तो देयर इज लेस चांस अगेन कि आपको कुछ उससे मिले, क्योंकि वो गरीब है और एक है बहुत ज़्यादा अमीर. इसलिए हम जो है ना हैप्पी मीडियम फाइंड करते हैं. आउटरीच मिस्टेक्स टू नेवर क्विट. कॉलिंग योर सेल्फ अ कॉपीराइटर इन द फर्स्ट मैसेज. Never, please, never ever do this. Revealing the price over text. स्टार्ट में प्राइस बता देना उसको, स्टार्ट में एक्सक्यूज़ दे देना कि उसको हम कह दें कि 300 या 500 जो है ना हम चार्ज करेंगे. तो ये चीज़ जो है उसको स्टार्ट में जो एक्सक्यूज़ दे देगी, मतलब मैं इतने ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता. इंस्टेड ऑफ उसको पहले वैल्यू शो करवाई जाए कि कितनी ज़्यादा उसको वैल्यू मिलेगी. सो नेवर एवर शो द प्राइस इन द स्टार्ट. आस्किंग फॉर अ कॉल इन द फर्स्ट मैसेज, अगेन डोंट डू दिस. बिजनेसेस जो है ना उनके लिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है ना उनका टाइम. टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड. बीइंग ओवरली क्रिटिकल एंड इंसल्टिंग ऑफ देयर मार्केटिंग, मतलब कि 48 लॉज ऑफ पावर नेवर आउटशाइन द मास्टर. मतलब कि जो उनका ऑलरेडी सिस्टम है ना उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, उसको जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना, कि मतलब आपका तो करंट जो लैंडिंग पेज है वो तो है ही बर्बाद, वो तो है ही, खाता ही उसका गोल है. इस तरह मत कहना. ये आप कह सकते हो कि दीज आर सम न्यू वेज विद वी कैन improve your landing page more. And next, being long-winded and beating around the bush. मतलब कि लॉन्ग मैसेजेस प्लीज सेव देयर एंड योर टाइम एज वेल. सो लॉन्ग मैसेजेस उनको सेंड करोगे तो वो रीड ही नहीं करेंगे. सो ट्राई योर बेस्ट टू एज शॉर्ट एज पॉसिबल, टू द पॉइंट. सेइंग आई लव टू. Please don't. No, 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 no. Please don't ever say this. I'd love to. He knows you love to take him on call. He knows you love to take his money. He knows you love to sell him. वो ये नहीं जानना चाहता. वो ये जानना चाहता है कि उसको उस कॉल में आने से उसको क्या वैल्यू मिलेगी. उसका टाइम जो है वो अपना टाइम देगा इतना कीमती, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा. तो ये उसको बताओ, ये मत कहो I'd love to.
please, how much outreach should we do a day? A commonly used question with an uncommon answer. There are many variables at play here, such as your outreach method, the time you have in a day, your proficiency at outreach. So the answer mostly depends on how much time you have, because most people have maximum output of 3 hours of deep work a day. It's best to use the majority of that deep work for outreach. Do your best to outreach at least 2 hours a day every day, and remember that long term consistency beats short term burst. So most of the people जो है ना, उनके पास जो डीप वर्क के बारे में अगर आपको ना पता हो तो एक बुक है डीप वर्क के ऊपर, वो आप रीड कर लीजिएगा, उसका ना थोड़ा सा समरी जो है ना वो देख लीजिएगा. सो डीप वर्क है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास 3 आवर्स होते हैं, तो ट्राई और बेस्ट कि आप 2 आवर्स एटलीस्ट जो है ना आउटरीच के ऊपर स्पेंड करो. प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स के हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स को जो है ना हंट करेंगे. फर्स्ट मेथड, स्क्रॉल थ्रू Instagram and take note of the prospect that you come across. These people are trying to grow their business and have a marketing budget. Next, two Instagram followers. Business owner usually follow other business owner. If you find someone with around 100 followers, a lot of those are going to be related to business people. मतलब कि जिस तरह का वो पर्सन होगा, जिस तरह का भी वो बिजनेस होगा, देयर इज मोर चांस कि वो उसी तरह के पर्सन को, उसी तरह के बिजनेसेस को फॉलो कर रहा हो. तो अगर आपने एक अच्छा बिजनेस फाइंड कर लिया, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट फाइंड कर लिया, तो आपको वहां से और भी बहुत सारे फॉलोइंग में से आपको और बहुत सारे क्लाइंट प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं. यूट्यूब सर्च, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है ना उनकी यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब इन द वर्ल्ड सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस उधर अवेलेबल होते हैं. तो यूट्यूब की सर्च से भी आप उनको रीच कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग निशेस, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड निशेस, एक्सपैंड योर नेटवर्क, गेन एक्सपोजर एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल क्लाइंट्स बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर प्रोफेशनल इन कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स. ये जो है ना कुछ निशेज हैं. फिटनेस एंड हेल्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज निशेज में, इसके ना सब निशेज बहुत ज़्यादा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस देश में. उसके बाद हाई टिकट मेंटरशिप इन्फो प्रोडक्ट्स जो होती हैं, दिस प्रोडक्ट हैव ह्यूज मार्जिन एंड बिजनेसेस लाइक कोर्सेज जो होते हैं, सम काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो इन पर्सन के पास हमें पे करने के लिए अमाउंट बहुत होती है. रियल स्टेट, मोस्ट इफ नॉट एवरीबडी हु डील्स इन रियल स्टेट हैज सब्सटेंशियल इनकम कैश ऑन हैंड. रियल स्टेट वालों के पास, एवरीवन नोज, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है. द 6 फंडामेंटल आउटरीच प्रिंसिपल, डोंट बी नीडी. Don't be needy. Acting desperate or needy is going to make you come off as low value and not worth the client's time. देखो, जब आप बहुत ज़्यादा नीडी शो करते हो ना, अपने आप को ऐसे शो करते हो कि प्लीज़ 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 गिव मी दिस, तब जो है ना ऑटोमेटिकली आप वहीं पे अपना खाता ही खत्म कर देते हो. वो प्रोस्पेक्ट आपका क्लाइंट बने खत्म हो जाती है, ये चीज़ ही खत्म हो जाती है. आप जो अपना ये नीडीपन शो करते हो, ये क्लियरली शो करता है कि आपकी इतनी वैल्यू नहीं है और क्लाइंट का जो टाइम है ना उसके काबिल ही नहीं हो आप, क्लियरली. सो डोंट बी नीडी. जस्टिफाई एनी क्लेम्स. नोबडी वांट्स टू ट्रस्ट योर वर्ड स्पेशली बिकॉज दे डोंट नो यू. जस्टिफाई ऑल ऑफ योर क्लेम्स विद प्रूफ. मतलब जो कुछ भी आप कहो ना उसको जस्टिफाई करो. जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि एज अ बिगिनर प्रोडक्ट अथॉरिटी, मतलब वो माइकल जॉर्डन वाली जो एग्जाम्पल दी थी उस तरह से, और दूसरे नंबर के ऊपर टेस्टिमोनियल्स शो करवा के. बी पर्सनल. डोंट ट्राई टू एक्ट सुपर कॉर्पोरेट, यू विल साउंड लाइक अ बॉट और जस्ट अ वियर्डो. मतलब सुपर ऐसे परफेक्ट एक्ट मत करना. कुछ आप जैसे फ्रेंड की जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उस तरह से जो है वो आप उसके साथ कन्वर्सेशन करना है, ऐसे बहुत परफेक्ट वे में नहीं. ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा सुपर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल होते हैं ना उस तरह से एक्ट मत करना. डोंट वेस्ट देयर टाइम. बिजनेस ओनर्स वैल्यू टाइम मोर देन मनी. कीप इट स्नैपी, सिंपल एंड क्लियर. इफ दे वांट डिटेल दे विल आस्क फॉर देम. बिजनेसेस जो है वो अपने टाइम की ज़्यादा कदर करते हैं इंस्टेड ऑफ मनी. सो प्लीज डोंट वेस्ट देयर नॉट योर ओन टाइम. गिव वैल्यू. Come to them with some sort of value to prove them you aren't a value vampire. दिस इज द बेस्ट वे टू मेक अ गुड इंप्रेशन. जब भी आप क्लाइंट को रीच करो ना, उसको एडवांस वैल्यू प्रोवाइड करो. वो प्राइस है, उसको एज अ प्राइस कंसीडर करो उसके रिस्पॉन्स की. मतलब ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि उसके रिस्पॉन्स की प्राइस है. अगर मैं उसका रिस्पॉन्स चाहता हूँ तो उसकी प्राइस यही है कि मैं उसको एडवांस में वैल्यू प्रोवाइड करूंगा. दिस इज अनदर करेंसी. डोंट बी पुशी. बीइंग पुशी विल ऑलवेज कॉज रेजिस्टेंस एंड मेक द अदर पर्सन थिंक दैट यू आर डेस्परेट. मतलब जब आप किसी कोई चीज़ उसके ऊपर थोपने की कोशिश करोगे ना, उसको कहोगे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, तो वो नहीं बाय करेगा. वो खत्म, खाता वहीं पे अगेन खत्म हो जाएगा. मतलब कोई भी चीज़ उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो. सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि क्या इसको इस सर्विस की ज़रूरत है भी या नहीं. अगर तो नहीं है तो वहाँ पे कह दो. ये चीज़ ना आपको कंप्लीटली सिग्मा बना देगी. मतलब क्लाइंट आया आपके पास, उसको आप कह दो सॉरी आई थिंक ऑपरेटिंग सर्विस इज नॉट फॉर यू दिस टाइम. जब आप ये बात कहोगे ना उसको, तो इन द फ्यूचर कभी भी वो जो क्लाइंट है ना उसके अंदर एक अलग ही किस्म की आपके साथ ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती है. तो लेटर ऑन अगर उसको वो काम नहीं होगा ना, तो अगर कोई और भी काम होगा तो वो आपको ज़रूर रीच आउट करेगा. द कोर 4 आउटरीच मेथड्स. दीज आर द 4 आउटरीच मेथड एंड डोंट थिंक कि ये कोई एक भी कम है. ऑल ऑफ दीज आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट. First of all, cold email outreach. Attain the prospect email. Send a cold email using fundamental building block of an effective email script. Follow up
फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स विद वैल्यू। कोल्ड ईमेल आउटरीच है, इसके रिलेटेड जो मैंने आपको पहले एजुकेशन दी है, इसके रिलेटेड जो पहले आपको मैंने जो कुछ सिखाया उस टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए जो आप उनको फॉलो अप करो। ईमेल आउटरीच ये डायग्राम जो है ये कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ईमेल ओपनर जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए। उसके बाद ऑफर करो उनको वैल्यू फ्री में, बिल्कुल फ्री में, जस्ट उनको कॉल के ऊपर लेकर आने के लिए, और फिर कॉल में आप जो है उनको अपनी सर्विस सेल करोगे। एंड द सेकंड वन इज वीडियो इंट्रो डीएम, गेट देम टू रिप्लाई विद एन ओपनर, send them a short personalized video introducing yourself and telling a little bit about what you do। ये चीज़ वीडियो इंट्रो जो है ना नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम करती है। ये चीज़ कैसे, मैं खुद एक बार क्लाइंट को रीच कर रहा था और इन एडवांस उसको शॉपिफाई से रिलेटेड कुछ काम था, तो इन एडवांस मैंने उसको वीडियो बना के प्रॉपर और उसको एक्सप्लेन किया कि ये आपका शॉपिफाई का काम है, इसमें जो है ना इस तरह से हम ये वाले मैंने कुछ स्टोर पहले बिल्ड किया और इनका जो डिज़ाइन है ना, इनका लेआउट जो है वो चाहिए जिस तरह का आपको स्टोर चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो मैं आपका स्टोर बिल्कुल जस्ट लाइक दिस स्टोर जो है ना मैं आपका बिल्ड कर सकता हूँ। उसके अंदर जितना भी काम होगा, उसकी डिज़ाइनिंग, उसके सारे इंस्टॉल करने ऐप, सबका सब कुछ, उसको मैंने शॉर्ट सी ना कंसाइज सी उसको वीडियो भेजी और वो वीडियो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रही थी, मेरी स्किल क्लियर कर रही थी, मेरी कम्युनिकेशन, मेरा वे ऑफ स्पीच, उसको ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही थी और इन एडवांस वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी वो वीडियो इंट्रो को कुछ इस डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहले आप उसको कॉम्प्लीमेंट भेजो, फिर वेट करो, फिर वीडियो इंट्रो भेजो, एंड देन नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट इज ग्रेट मल्टीप्लायर बिल्डिंग लेवरेज। ये डायग्राम जो है ना आपको ये एक्सप्लेन कर रही है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू पुट इन लेवरेज एंड व्हाट यू गेट आउट। और ये नीचे साथ में चैट में ये बंदा क्या कह रहा है, दिस डूड दिस इज स्ट्रेंज, आई एम गेटिंग एक्चुअल क्लाइंट्स रीचिंग आउट टू मी when it's usually the other way around, I've gotten like 6 inquiries yesterday and today। मतलब उसने अपने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है ना वो कुछ इस तरह से उसने बिल्ड किया है कि अब उसको आउटरीच करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, खुद उसको क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं काम के लिए। मल्टीप्लाइड लेवरेज इंस्टाग्राम, greatly increase your chances at landing clients just by investing less than 20 minutes a day into your Instagram। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, पोस्ट ऑफ हाई वैल्यू एक्टिविटीज, फोटोज ऑफ यू एट द बीच ट्रैवलिंग और विद अदर हाई वैल्यू पीपल, नेचुरली रेजेस योर सोशल प्रूफ एंड क्रेडिबिलिटी। देखो आपने ये तो सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पता है ये क्यों कहा गया है, क्योंकि पीपल ऑलरेडी हैव जज द बुक बाय इट्स कवर। लोग जज करते हैं, लोग जज करते हैं वीडियो की थंबनेल से कि वीडियो कैसी होगी, बुक के कवर से कि बुक कैसी होगी। सो इसलिए ट्राई और बेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहाज के ऊपर चढ़ के तस्वीरें बनाओ, सिंपल बट स्लीक, आपके पास जो है ना अपना ट्राई और बेस्ट, इवन आपके पास कख भी नहीं है, आपके पल्ले ही कख नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके ना, इवन कुछ पैसे फोटोग्राफर को ही दे के उससे जो है ना अपनी कुछ पिक्चर्स बनवाओ और एडिट करके उनको इंस्टाग्राम के ऊपर डालो। और ये जो फिल्टर्स वगैरह आजकल तो एआई आ गया है यार, ये फिल्टर जहाँ लगाने के लिए बने हैं तो इनको यूटिलाइज करो और अपनी अच्छी सी पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डालो। सेकंड, क्रोजल कोऑपरेटिंग बिजनेस पोस्ट, शो दैट व्हाट यू नो एंड प्रूव योर मार्केटिंग नॉलेज। मतलब आपको जो कुछ आता है ना उसको एज मच एज पॉसिबल शेयर करो। उसके बाद क्विक रील्स, शो अप स्पीकिंग ऑन कैमरा टू एक्सपोनेंशियली बिल्ड ट्रस्ट विद योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। देखो वीडियोस विल ऑलवेज वर्क एवरी सिंगल टाइम, वीडियो से जना एक अलग किस्म का ट्रस्ट बिल्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें ना क्लाइंट को क्लियर होती हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। सो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे एक्टर ही बन जाओ, कोई 50,000 जो है वीडियोस डालो, सिर्फ सिंपल 2 से 3 वीडियोस भी चल जाएंगी। Testimonial and result, testimonial from clients, result you have gotten, and even post reels of how you got those results। Again testimonial and results जो है ना ये भी आप किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके उसके ऊपर अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर ऐड करो। हाउ टू क्लोज द कॉल, मेन प्रिंसिपल, डोंट रिलाई ऑन अ सेल्स स्क्रिप्ट, एनी बिजनेस पर्सन वर्थ देयर सॉल्ट विल स्मेल इट अ माइल अवे एंड बी टर्न्ड ऑफ। सेल्स स्क्रिप्ट के ऊपर आपका रिलाई करना ना कंप्लीटली आपकी बर्बादी कर देगा पूरी की पूरी। आप वहाँ पे जस्ट लाइक ईमेल, आप वहाँ पे उसके साथ ना कनेक्शन बिल्ड करने गए होते हैं। मतलब एक पर्सन आपके पास है अपनी कार लेकर, ना उसका छोटा सा कोई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करवाने के लिए आप उसको कहते हो इधर आओ इधर आओ इधर बैठो, मैं आपको जो है ना सारी की सारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आप उसको जो है ना ऑयल्स के रिलेटेड, इंजन के रिलेटेड सारे का सारा कुछ आधा घंटा उसको सुनाते हो। उसको क्या चाहिए था, उसको सिंपल जो है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए था, सिंपल उसको जो वो छोटा सा काम करवाना आया था ना वो उसको फिट करवाना था, उसको नहीं जानना था ऑयल्स के बारे में, इंजन के बारे में, पूरी कार की हिस्ट्री, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सलूशन देने आया है और उसको वो बताओ। अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी, शट अप। शट अप मीन्स आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को बोलने का मौका दो, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि उसके बिजनेस को आप इतना नहीं जानते। तो ट्राई और बेस्ट के क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दो बोलने का, खुद कम बोलो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। सेव द प्राइस अंटिल द एंड, स्टार्ट में ना प्राइस कभी भी मत बताना। सेव द प्राइस अंटिल द एंड, ऑफर देम व्हाट दे नीड एंड वांट रादर देन व्हाट यू गुड एट। उनको वो चीज़ ऑफर करो जो उनको चाहिए, वो चीज़ मत ऑफर करो जिसमें आप प्रोफेशनल गुड हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो अपना छोटा सा जो है वो स्टीयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आया, आप उसको पूरी की पूरी इंजन ऑयल पता नहीं आप और ही चीज़ें ऑफर करो तो वो काम नहीं चलेगा, उस तरह से सारे का सारा काम
उल्टा बर्बाद हो जाएगा। सो ऑफर देम what they need. The goal of the call is not to sell to them but understand their situation in order to see if your service would be right for them. जो कॉल होती है ना, उसका गोल ये होता है अंडरस्टैंड करना कि उस कस्टमर की, उस क्लाइंट की नीड क्या है, उसको समझना। ये नहीं होता कि आप उसको अपनी जो है वो ना सर्विस सेल करने के हो, मे बी उसको उस टाइम वो सर्विस चाहिए ही ना हो। सो इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। ये नहीं कि बस आप अपनी जो है ना सर्विस आप जो है उसको थोपना चाहते हो। इस तरह से चलोगे तो जब आप कोई भी चीज़ ऐसे थोपना चाहते हो ना, स्पेशली क्लाइंट्स को इन कॉपी राइटिंग, तो दे विल रिकग्नाइज फ्रॉम माइल अवे, आराम से। सेट बेटर एक्सपेक्टेशन, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। जब आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को सही तरीके से सेट करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम फिर लेटर ऑन बिल्कुल भी नहीं होती। आप ऑलवेज जो है ना क्लाइंट को अंडर प्रॉमिस करो, मतलब कि जितना आपने उसको कहा ना कि मैं इतना करके दूंगा, आपने उसको कहा ना कि मैं 8 ईमेल्स आपको 4 दिनों में लिख कर दूंगा, आप उसको 10 ईमेल्स लिख के दो 3 दिनों में। जब आप इस तरह से करोगे ना, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करोगे, तो क्लाइंट विल बी 1 बिलियन% हैप्पी फ्रॉम यू यार। रियली रियली फॉलो अप लेसन्स, द मनी इज इन द फॉलो अप। 90% of the time to close a dream clients, it will take consistent follow up. In business, follow up is crucial to getting clients. Second, space your follow ups out. Don't be annoying and spam follow ups every day. Space your follow ups at least a few days apart. ये नहीं कि मैसेज के ऊपर मैसेज किए जा रहे हो, आप थोड़े से उसको स्पेस दोगे और फिर उसके बाद जो है ना आप कुछ जेन्युइन, हर बार जेन्युइन वैल्यू के साथ उनको जो है ना अप्रोच करो। नंबर 3, कम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एवरी टाइम। सेइंग समथिंग लाइक, hey, did you see my last message is highly annoying. If you tried one of the outreach method mentioned previously, you could just follow up with another one next time. और यहाँ पे ये डायग्राम क्या करिए, what do I do once I've reached out to everyone, start back at the top। मतलब कि जब आपने जो है ना ईमेल से रीच कर लिया, तो उनको फिर दोबारा से फ़ोन कॉल से करो, डायरेक्ट मैसेज से करो, फिर एसएमएस से करो, वॉइस मेल से करो। तो इस तरह से आप जो है ना सारों को बार बार डिफरेंट मेथड्स के साथ रीच करो। यू हैव सिक्योर्ड द कॉल, नाउ व्हाट। Set expectation while keeping in mind your goal to over deliver on quality or quantity. Manage expectation, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, under promise over deliver always. Set deadlines, this ensure your client knows when the work is done and also gives you another variable to over deliver on। मतलब डेडलाइन सेट करो, मतलब क्लाइंट को पता हो कि आप उसको जो है वो कब डिलीवर करने जा रहे हो प्रोजेक्ट। एक्सेप्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ प्ले पेमेंट, इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, द फर्स्ट हाफ ऑफ द पेमेंट शुड बी डन प्रायर टू द प्रोजेक्ट एंड द सेकंड हाफ अपॉन इट्स कंप्लीशन। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हाफ पेमेंट का यूज को स्टार्ट में कहो, ताकि दोनों पार्टीज के लिए जो है ना इतना ज्यादा रिस्क ना हो। और स्पेशली अगर आप बिल्कुल न्यू हो ना, तो उसको हाफ पेमेंट का भी स्टार्ट में मत कहना, दिस इज एन एडवाइस। उसको स्टार्ट में आप फ्री में ही वैल्यू प्रोवाइड करो, जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते जहां पर आपका जो है प्रॉपर बिल्ड हो चुका है ब्रांड, आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके ऊपर क्लाइंट का ट्रस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। द पेड इन 30 डेज रोड मैप। फर्स्ट वीक में आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा कॉपीराइटिंग की लर्निंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंटिंग करोगे, जितना हो सके कंज्यूम करोगे नॉलेज रिलेटेड टू कॉपीराइटिंग। फिर सेकंड वीक में जो है वो आप अपनी आउटरीच स्टार्ट करोगे, जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उनको यूज करते हुए जो है आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे। And the third week, at first outreaching will be slow and confusing, but during this week you should work on just getting the reps in anyway। मतलब you need consistency, whatever is going to happen, you have to be consistent। Make your outreach efficient। Now the 4 week, now that you have a baseline for your outreach efficiency, you should work at getting efficient in improving quality। अब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब जो है वो आप जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करोगे, आप जो है मोर प्रोडक्टिव बनोगे। उसके बाद Fifth week, close your client using an LRO। Use one of the low risk offer below in order to get your first client। लो रिस्क ऑफर क्या है? कमीशन बेस्ड डील, यू ओनली गेट पेड इफ दे गेट पेड। इस तरह की जब आप क्लाइंट को स्टार्ट में ऑफर कराओगे ना, तो क्लाइंट के पास आपको नो बोलने के बहुत ज़्यादा चांसेस कम होंगे। आप उसको कह रहे हो यू ओनली गेट पेड, कि आप मुझे उसी वक्त पे करना जब आपको मेरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। डिस्कवरी प्रोजेक्ट, स्मॉल वन टाइम प्रोजेक्ट लाइक 8 ईमेल फॉर 300। आप स्मॉल प्रोजेक्ट लोगे, मतलब छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। वर्क 2 weeks फॉर फ्री एंड देन गेट कंपनसेटेड इफ द रिलेशनशिप इज प्रॉफिटेबल। आप उनको फ्री ट्रायल, जैसे प्रोडक्ट नहीं होती फ्री अपने ट्रायल देती हैं, सेम लाइक दैट आप जैसे स्टार्ट में फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करोगे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। सेल बेटर कस्टमर, जैसे मैंने आपको कुछ ऊपर निशेस बताई थी हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड और एक रियल एस्टेट के रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड। जब आपके कस्टमर रिच होंगे ना, तो उनको आपको पे करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो चूज योर कस्टमर्स वाइजली। नेक्स्ट, फिर वीक 6, कीप आउटरीचिंग एंड ऐड योर टेस्टिमोनियल टू योर इंस्टाग्राम। क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बाय डिलीवरिंग एक्सेप्शनल वर्क एंड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस राइट फ्रॉम द स्टार्ट से ही जो है ना आप कस्टमर सर्विस क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है ना अपने यहाँ पे रखोगे, उसको नीचे मत आने देना। जितना हो सके क्लाइंट को जो है ना
Your main priority always is to make your clients happy. Week 7, get your next 2 to 4K month copywriting client with your leverage Instagram से फिर जब आपका Instagram बिल्ड हो चुका होगा, वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स होंगे, आप अच्छी खासी उसके ऊपर प्रोफाइल आपकी बन चुकी होगी, फिर आपको वहाँ से क्लाइंट, जैसे मैंने आपको ऊपर चैट दिखाई थी, उसका एक मैसेज दिखाया था कि उसको अब खुद क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर आपको ये आउटरीचिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपको इवन खुद जो है क्लाइंट अप्रोच करेंगे। स्केल योर फर्स्ट क्लाइंट टू 2 to 4K, फिर आप स्केल करोगे अपने क्लाइंट को, उसको डिफरेंट सर्विसेज और भी ऑफर करोगे। उसके बाद वीक 9 to 10, गेट योर लास्ट 2 to 4K मोर क्लाइंट विद रेफरल और आउटरीच। नाउ यू हैव मेड इट टू द एंड, कंग्रेचुलेशन, बट दिस इज नॉट इट। स्टार्ट योर फर्स्ट पीस ऑफ कॉपी, अभी के अभी जो है ना अपनी स्टार्ट करो, प्रैक्टिस अभी के अभी स्टार्ट करो अपनी जो है ना प्रैक्टिस करनी, जो है ना प्रैक्टिस के बिना इट्स नथिंग। जब आपके पास नॉलेज हो उसको इंप्लीमेंट ना करो ना, तो वो सेम ही होता है कि अगर आपके पास नॉलेज जैसे है ही नहीं। तो इसलिए ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सेकंड कहता है 4D कॉपी स्टार्टर किट। ये सारे का सारा जितना भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है, टेम्पलेट, ये सब का जो है ना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप एक्सेस कर सकते हो। ज्वाइन द फ्री कॉपी राइटिंग डिस्कॉर्ड, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सारे के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स कॉपी राइटिंग के आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करो। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव बिलो। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। कीप अप टू डेट विद न्यू कंटेंट। इतनी सारी वैल्यू आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया है, सो इतना तो यार बनता है यार, अब सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, एटलीस्ट 1 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो मेरा बनता है। इतनी सारी वैल्यू आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की है। एंड दिस कंप्लीट कोर्स क्रेडिट गोज टू माय कोच टाइसन 4D, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड कोच मास्टर हैं कॉपी राइटिंग में। उनके यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितना भी मैंने यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया, डिस्कॉर्ड की जो कम्युनिटी है, स्टार्टर किट है, बहुत सारी और वीडियोस हैं कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, वो सारे का सारा कुछ माई कोच टाइसन 4D का है। ये सारे के सारे जो मटेरियल यूज़ किया है, ये भी उन्हीं का है जो उन्होंने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, इतनी सारी वैल्यू। सो दिस कंप्लीट कोर्स क्रेडिट गोज टू कोच टाइसन 4D एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, थैंक यू सो मच। और ये मैंने आप तक पहुंचाया इन डिफरेंट लैंग्वेज विद माय पर्सनल टच। और नेक्स्ट अभी से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और जितना हो सके मैक्सिमम जो है ना वो क्लाइंट्स को आउटरीच करो, अपनी बिल्ड करो प्रोफाइल एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। और डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करो और मैदान जंग में उतरो और शुरू हो जाओ। बस अब तलवार लेके ना अब तबाही मचा दो, पैसे कमाने शुरू कर दो। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ ना लगी हो तो आप जो है बैक जाके उस सेक्शन को दोबारा देख सकते हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक प्लीज़। टाटा।